Hello everyone, today we are going to start our module 2. In our module 2, first we will see the accumulation and distribution जिसको stage analysis भी बोलते हैं. Then we will talk about the volatility contraction pattern. After that we will look at visualization, how to visualize the candle. Then for finding the target and the stop loss, we will talk about Fibonacci pattern, then entry and exit point and allocation, and in last we will talk about the fundamental cheat points. Okay, so let's start with stage analysis. So many times you have seen my tweet that we are in stage 2. So today we are going to learn what is stages and how it actually works. So in a market cycle or in any business cycle, there are 4 types of stages: stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. Stage 1 is also known as consolidation or the accumulation stage, where mostly the big players accumulate the stock for the longer term. Then it's come the stage 2. Stage 2 is called the advanced phase, right? So in advanced phase, the stock goes up. After that stage 3 come. Stage 3 is distribution phase. यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली आपके फेक ब्रेकआउट्स जो होंगे वो इसी जोन में होंगे, और यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे हैंड्स चेंज होते हैं फ्रॉम बिग प्लेयर्स, शिफ्ट देयर होल्डिंग्स टू द small retailers, and after that the stage 4 come into the picture, right? So if you are an MBA student, or you have done the MBA, so in MBA the same cycle came. You just need to ignore this 30 weekly moving average. You just need to focus on the stages on this slide. So in most of the business also you will find the same structure. Once the business set, that is the stage 1, then once the business is set and the theme or the मतलब कहते हैं the working intention of the company is some new discovery is there in the market by this company. For example, like solar, all this solar's meter and all such type of companies, so they enjoy the profits. So because of that the stocks goes up, or you can say their earnings goes up. So for that reason, that is stage 2 advancement phase of the business. And once the other players, other competitors see that this business model has a good profitability, they will start entering into that zone, right? And for that reason, too many players in the same sector, the profit start dividing, because the monopoly which the stock is enjoying, a company is enjoying in the stage 2, that is now distributed among the other players. For that reason, the earnings of the company, the advancement phase, that we say OPM, operating profit margin, जो होगा वो कंपनियों का कम हो जाएगा. एंड फॉर दैट रीज़न उसके बाद जब मोनोपोली धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा उस कंपनी का, देन स्टेज 4 द डिक्लाइनिंग फेज, और कहते हैं कि जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, दैट इज स्टेज 4 ऑफ द मार्केट कम इन टू द पिक्चर, right? So we will see it with some examples. So coming to the chart, okay, so in chart, this is the HAG chart on weekly time, right? So if you find this is your, let me hide the EMA for some timing. This is your stage 1, and this is your stage 2, this is your stage 3, and this is your stage 4, right? Again I am repeating, this is your 1, this is your advancement phase, this is your distribution phase, and this is your declining phase. Okay, all right. So what actually, as a trader, our job is to find out the stock which are in the stage 2, and for that reason I told you in my module 1 is linked with the module 2. In case if you have not finished the module 1 completely, so better complete the module 1 finish first and then come to the module 2. So what I told you to buy the weekly breakout, and the monthly RSI should be 70, and your volume is more than 2x, right? 1.4 million to 3.8 million, right? Almost greater than 2x. So that condition itself will give you the indication where the stage 2 is there in the stock, so that you can directly avoid such type of accumulation zone and just enter into the zone when the advancement phase of the stock or the sector start, right? So in this, if you now let me ask, if you find at this point all the soldiers are aligned and this breakout happen, at around 930 rupees, and till it goes to the 21190, matlab almost 2x is done in the stage 2.
Then the beauty of stage 3 is that in stage 3 what will happen for most of the people will look it as a consolidation phase for the stock for further advancement. And what will happen in the stage 3, if you find the volume will start drying up, and whenever the stock try to do the breakout, it will fail automatically within the very next day or maybe next 1 to 2 days. Okay, and before starting of the stage 4, always in most of the cases you will find that in last of the stage 3 there is a fake breakout will happen, right? And the stock will come out from the consolidation, and very next week, within the very next week or maybe 1 or 2 weeks, it will fail. But how to identify this key? This is the end of stage 3. In most of the cases you will find that your RSI, weekly RSI, will not go above 70 zone. And one more thing you will find at this point, let me hide box for some time. So what will happen, your horses will become weaker with the movement. If you see, your RSI is going down, that means at this price your RSI was strong, but at this point the price is trying to go up, but the RSI, your horses are not that much strong. That is an indication of stage 3 to end and the stage 4 start after that point. In most of the cases, sometime it happens with me also, not sometime, many times it happen with me ki I just entered the stock looking that ki maybe this will be the breakout after a good consolidation. So there is no issue, it's not a trap. Sometime you will get trapped in such type of point. So what you need to do, you have to observe the behavior of the stock for the next week. If the stock is not showing that much interest or the follow-up candle is not coming into the market, so what you have to reduce the quantity, and or you can take a stop loss. Okay, mostly stop loss will be yours weekly low of the breakout candle. I am again repeating ताकि आप बार बार एक ही डाउट आपको ना हो. अगर आपका वीकली ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है नेक्स्ट कैंडल के अंदर या उसके नेक्स्ट कैंडल में, यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक विदाउट एनी रीजन. इज इट क्लियर टू यू? तो इन दिस केस your this is your breakout candle, right? Volume is not that too strong and this is your breakout. So at next week this price cut for 2147, you have to take your stop loss and exit the stock. So if you exited with this 5 to 6%, you better saved yourself from dragging into the stock for a longer period of time. Got it? ठीक है. Same thing again, I will going to tell you in the same stocks. Here you will find this is your first weekly breakout and this is your second weekly breakout, and after that a good rally we have seen from 300 rupees to around 2000, मतलब 7x आपका ये स्टॉक यहाँ पे हुआ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जोन, अगर आप इस जोन को ढंग से देखेंगे तो you will find that your RSI is becoming weak with every time the stock is making new high, and your volume is also declining in this phase. In most of the cases जब यहाँ तक का चार्ट बन रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा जो न्यूज़ होगा मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा कि स्टॉक इज समथिंग लाइक दिस, बट यू ऑलवेज हैव टू कीप द कैंडल एज अ रेफरेंस फॉर द न्यूज़ इन द मार्केट. क्योंकि क्या है, मार्केट के अंदर न्यूज़ हमेशा स्टॉक चलने के बाद आता है या फिर उससे लिंक्ड होकर चलता है जब तक स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है. बट व्हाट हैपन एट दिस पॉइंट, अगेन इफ यू फाइंड द सेम साइकोलॉजिकल थिंग इज देयर. This, if you see that the in this week the stock tried to do the breakout and the very next week it fails, right? And your RSI was down. If you see, this is the volume. So if such type of thing happen, so this is the clear indication that the stage 3 is about to end, and after that the stage 4 come into the picture. ठीक है, most of the stage analysis will be clear to you in the weekly chart only. In daily it's form in every 15-minute chart, 1-hour chart, in every time frame you will find such type of patterns. But for accuracy purpose I always try to find the stage analysis in the terms of weekly chart. ठीक है. Now if I ask you what stage is going on, so you can easily say that on weekly this is a
दिस इज योर डिक्लाइनिंग फेज, राइट। डिक्लाइनिंग फेज के बाद आपका आया अगेन एक्यूमुलेशन फेज, तो दिस इज योर स्टेज 1 एंड द स्टॉक इज इन स्टेज 2, राइट। देन दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेशन जोन कह सकते हो या कंसोलिडेशन फेज कर सकते हो। अगेन स्टॉक इज मूविंग अप। नाउ अगर इसकी टाइम फ्रेम की बात करें तो दिस इज द स्टेज 1 अगेन एंड दिस इज योर स्टेज 2, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन दिखा और पहले चलने से जस्ट पहले यहाँ पे इसने एक विक बनाया, मतलब दैट कन्फर्म दैट द स्टॉक विल गो डाउन फ्रॉम हेयर एंड दिस इज द स्टेज 3, राइट, सॉरी स्टेज 4 डिक्लाइनिंग फेज। तो इन मैनी टाइम ऐसा होगा कि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड बट देयर आर टू मैनी एक्यूमुलेशन, राइट, एक्यूमुलेशन, देन एडवांसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइनिंग फेज मिलेगा। देन अगेन आपको ऐसा मिलेगा एक्यूमुलेशन जोन, एडवांसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो charts will go like this only. Now let's check this thing on the daily chart, ठीक है। ये डेट आपका होगा 20 September 2021, September 21, ठीक है। तो नाउ वी विल सी विद अ वाइडर एंगल कि ऑन डेली चार्ट पे वहाँ पे उस समय क्या हो रहा था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन एवर द स्टेज 2 विल फिनिश, ठीक है, तो इट विल बी फिनिश विद बैक टू बैक कैंडल्स। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्टेज 2 खत्म होने को आएगा उससे ठीक पहले, चाहे वो निफ्टी हो चाहे स्मॉल कैप हो, कोई सा भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, वो हमेशा बड़े बड़े मूव्स देगा और वो मूव्स बैक टू बैक आएंगे। वो मूव्स ऐसे आएंगे कि आपको फोमो हो जाएगा कि नाउ आई थिंक यू विल फील दैट यू हैव मिस्ड द whole rally and you will try to buy the stock either on the support or accumulate like this at this points, right? So what happened actually ki this is the stage 2 and this is the stage 3 was going on the daily chart. There is no volumes, again the breakout happen on this, right? तो ब्रेकआउट होगा, सबको क्या लगेगा इतना बड़ा कंसोलिडेशन का स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है, लेट्स इन। तो यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होगा, एक छोटा ही वॉल्यूम होगा, मतलब बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू एंटर एट दिस लेवल। in case if you entered this stock at this point, maybe you will find that this is a good consolidation and the stock is ready to ramp up again. So what you need to do, you have to keep the stop loss of the breakout candle. This is your breakout candle with good volume, तो इस low is your stop loss, आपको इस point पे उसमें से निकलना ही है। Is that clear, right? तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। तो अभी मैं आपको मेरे ट्वीट समझाता हूँ। मेरे ट्वीट से मैंने आपको कहा था वी आर इन स्टेज 2, राइट। तो राइट नाउ वी आर in stage 2 in most of the stocks. The people who are sitting on the cash, what they will do once the market will make a good long base and when मार्केट अगेन स्टार्ट टू मूव ऑन, तो उन लोगों को लगेगा कि हमसे लास्ट रैली छूट गई बट अब जो रैली है वो हम नहीं छोड़ेंगे, एंड एट दिस फॉल्स ब्रेकआउट दे मोस्टली दे पीपल विल एंटर एंड आफ्टर दैट स्टेज 4 विल कम इन टू द पिक्चर। एंड फॉर दैट रीज़न कभी भी जब मार्केट को गिरना होता है उससे पहले किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट is happening right now in the market. Now coming to the index itself, तो आपको सबसे पहले वीकली चार्ट पे आपको स्टेज एनालिसिस को देखना है कि किस तरह का सिनेरियो है, राइट। तो व्हाट यू विल फाइंड हेयर इज दिस इज योर accumulation and this is the breakout. So this is your stage 2 and this is the stage 3. At this stage 3 you will find that your RSI is going down with every leg and with 70 touch किया और जहाँ से लौटा उसके बाद this is your stage 4. As I told many times that India is in a big time frame bull run. तो बुल रन में है, तो इस छोटे टाइम फ्रेम का जो स्टेज 4 था वो यहाँ ख़त्म हुआ। देन अगेन दिस इज़ योर स्टेज 1 स्टार्टेड एंड दिस इज़ योर स्टेज 2 एंड छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो स्टेज 2 आपको दिखेगा। राइट नाउ वी आर इन द स्टेज 2. व्हाट विल हैपन इन स्टेज 3, इट विल गो लाइक दिस एंड देन वी कैन सी ए डिप।
तो दिस इज राइट नाउ वी आर फॉर दैट रीजन आई एम मेरा जो ट्वीट है कि वी आर इन स्टेज 2, तो मार्केट विल नॉट फॉल, द रीजन इज बिहाइंड दैट रेशनल इज दिस वन। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको करेक्शंस स्टेज एनालिसिस आप करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज स्टेज 2, दिस इज योर स्टेज 3, योर RSI विल गोइंग डाउन एंड दिस इज स्टेज 4, राइट। छोटा हर टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। देन अगेन दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन, देन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, राइट। so this is again the stage 2, stage 3, stage 4, again we are entering into the stage 2. So for that reason market is going quietly high without ignoring all the news is bad news is also. Now let me share few more examples. Okay, this is just Titan chart. So what you find in the Titan chart, same thing, this is your stage 1, ठीक है, this is accumulation, this is your advanced phase. मोस्टली जो एडवांस फेसेस होगा वो हमेशा बॉक्स के बाहर ही देखने को मिलेगा आपको वीकली पे। दिस इज एडवांस फेस एंड दिस इज योर स्टेज 3, एंड जस्ट बिफोर द स्टेज 3 exit there is a breakout happened at this point, and after that this breakout just fail within a very next 2 weeks, और उसके बाद आपका आ गया स्टेज 4, राइट। सेम वे अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज योर स्टेज 2 एंड दिस इज योर स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन स्टेज 4, ओके। So you can easily find the stage analysis on the weekly charts. Let's see JK Tyre. ठीक है, same right now what is happening in the JK Tyre, let's see. तो this is your, जब भी बॉक्स में उसके बॉक्स के बाहर निकला तो ये आपका स्टेज एक्यूमुलेशन के बाद का ब्रेकआउट था, तो दिस इज योर स्टेज 2, राइट, this is your stage 3 and this is your stage 4. Now again after the good accumulation maybe the chance that the stock will enter into the stage 2 and it will go like this only. So this is how आप ऐसा नहीं है हर स्टॉक हर सेक्टर के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। और ये जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दिस इज़ द स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3 एंड दिस इज स्टेज 4। मोस्टली केसेस के अंदर आप स्टेज 3 का जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे आप हमेशा बिग ब्रेकआउट देखेंगे, और दैट ब्रेकआउट विल फेल विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो नाउ कमिंग ऑन द डेली चार्ट, और यू लेट्स सी मंथली चार्ट, ठीक है। So let me open stock, suppose SMS Pharma, ठीक है। तो दिस इज द SMS Pharma चार्ट। व्हाट इज VCP इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, जितनी भी जैसे मान लो कोई स्टॉक है वो इस तरह का मूवमेंट कर रहा है, तो ठीक है, तो जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर अपन पत्थर डालते हैं तो एक आपने देखा होगा सर्कल्स टाइप एक फॉर्मेशन होता है, तो धीरे धीरे वो सेटल डाउन होता है। सिमिलरली स्टॉक भी जब बहुत वोलेटिलिटी से बाहर आता है तो इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ रिपल्स एंड दिस रिपल विल सेटल विद द टाइम, राइट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्टॉक वेयर द वोलेटिलिटी इज अबाउट टू निल। So for that reason if the volume will come and this VCP pattern is forming on the upper side, मतलब ये अप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है, तो you can expect a good move in such type of stocks, right। तो जो मैंने आपको पैटर्न्स बताया ना, जॉनी लीवर पैटर्न, जॉनी लीवर पैटर्न इज नथिंग, इट्स ए जस्ट ए लीवर पैटर्न लाइक दिस ओनली, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर जॉनी लीवर पैटर्न ओनली, बट ताकि आपको चीज़ें आंखों से इजीली विजिबल हो, फॉर दैट रीजन वी हैव कैप्चर्ड दिस टाइप ऑफ नेम फॉर दिस पैटर्न्स, ठीक है। तो दिस इज अ जॉन SMS Pharma। इफ यू सी द SMS Pharma ऑन मंथली चार्ट, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज ए गुड वोलेटिलिटी, सॉरी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन डेली में ही दिखेगा आपको, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी आई, उसके बाद दिस वोलेटिलिटी विल स्मूथन डाउन एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे आपका एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, देन एक पूरा एक स्टॉक एक मोमेंटम के अंदर आ गया, राइट।
तो आप यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हो कि राइट नाउ आई एम बुलिश ऑन नाटको फार्मा एंड द एसएमएस फार्मा. द रीजन इज सिंपली योर ब्रेकआउट इज हैपनिंग एंड द स्टॉक इज फॉर्मिंग 4 to 5 कैंडल. दिस इज फॉर्मिंग जिद्दी पैटर्न, राइट. तो जिद्दी पैटर्न एट द ऑल टाइम हाई. तो लेट मी शेयर गुड एग्जांपल्स विद यू. For example, let's take say PCBL chart itself. तो what is happening अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो this was the dip. This dip is around 20%, right? Let for a timing I am removing the box and other things. ठीक है, तो this dip is 20%. Now if you take this dip, so this is around 7%. Now if you take this dip, so this is around 3%, right? So what you can observe at this point, this is 20% dip, then it dip reduced to 7%, and here this dip reduced to 5%. And once the ripples are almost done, the stock did a good breakout today itself from last 2 days, right? So this is how you have to find out. For that in slide also you will find this type of pattern. तो वी इसको यूजुअली अपन 2T बोलते हैं, मतलब 2 रिपल्स आप करेंगे, देन 3T, देन 4T, 5T. जितने ज़्यादा रिपल्स हैं, और जितना मतलब रिपल्स इज नथिंग, जस्ट द वोलेटिलिटी इज रिड्यूस्ड टू द मैक्सिमम लेवल. If your volatility is reduced to the maximum level, or you can say the narrow band, the stock is trading in a narrow band, so there is a good probability of a blasting move in the stock if the stock is in uptrend, as well as you know where the you have to keep the stop loss. ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. ऑल्दो दैट्स ए ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, और मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो उसको मैं से एक पैटर्न आपको बताता हूँ. दिस इज द वेल्सपन इन्वेस्टमेंट कंपनी, राइट. तो दिस इज द, इसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी थी, देन ये वॉलेटिलिटी स्प्रेड हुई, और अभी राइट नाउ तो देयर इज नो वॉलेटिलिटी. तो एक्चुअली व्हाट द बॉक्स टेल यू ना, तो द बॉक्स विल टेल यू वेयर द नैरो बैंड इज फॉर्मिंग. तो यू विल फाइंड दैट दिस इज द नैरो थिंग. अब होगा क्या, वेन एवर द कैंडल विल कम ना, इट विल बी अराउंड 20 और 10 और 20% कैंडल यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस काउंटर. बट एक्चुअली एट वॉट टाइम इट विल कम, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इन सच टाइप ऑफ स्टॉक. इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो होते हैं इनमें यही दिक्कत होता है. लेट मी शेयर यू द गुड एग्जाम्पल ऑफ BCP पैटर्न इज टाटा इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो at this point if you see there is a narrow band on Darvix and no or nothing, no volume is there, just the breakout happen at this point, right? After that the stocks do the retest and this form a good form, then again it form a VCP pattern with no volatility at this point, and then again breakout happen. The stock is moving in that फिर अगेन 2 दिन चलता है, उसके बाद आप देखोगे एक पूरा मतलब आपका जॉनी लीवर पैटर्न बन जाएगा, आप देखेंगे ना. तो जॉनी लीवर पैटर्न इज नथिंग, इट्स सिंपली टेल यू वेयर द VCP इज फॉर्मिंग. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज योर रेड लाइन, एंड दिस इज व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन द ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, एंड द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, देयर इज अ गुड चांस दैट स्टॉक विल ब्लास्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द सेम थिंग हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑल्सो. फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन द VCP पैटर्न इज फॉर्मेशन, एंड अगेन दिस थिंग्स हैपन, राइट. ओके, इसके बाद तो आई थिंक ये शायद उसमें चला गया था ASM में, एंड उसके बाद तो वॉल्यूम से बिल्कुल गायब हो गए. बट ड्यूरिंग दिस जर्नी 2500 टू अराउंड 9000, दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 3x द स्टॉक हैपेंड इन दिस वे. अभी नॉर्मली क्या होता है, आप एग्जैक्टली इन दिन को पकड़ने जाओगे ना तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. तो यू हैव टू मेक द पोजिशन 3 to 4 और 5 days back, and you have to wait in such type of stock because you don't know at what time or what day the volume is suddenly स्पाइक ऑफ. क्योंकि अगर आपने ये 2 मूव आ गए उसके बाद अगर आप इस स्टॉक को ले रहे हो तो देयर इज नथिंग मच लेफ्ट फॉर यू, जस्ट इंस्टेड ओनली द वेटिंग फॉर द स्टॉक टू गिव यू द नेक्स्ट मूव, राइट. बट इफ यू फाइंड दिस थिंग ऑन द मंथली चार्ट ना, तो इट विल बी मोर.
अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे एंड इफ यू हैव द पेशेंस टू सिट ऑन मंथली चार्ट, तो इट्स ए कंप्लीट क्लियर ब्रेकआउट ऑफ मंथली, एंड दिस इज अ first, second, third breakout on monthly time frame. Your RSI is good, and this is the price 2700 to this one. Now what is happening in this stock is, the stock is just coming to the soldiers, and once it again meet the soldier, it will go up, but already the stock is 4x now, right? So this is how you have to find the now this is the Bajaj Holding investment firm. So if you find, this is forming a humble pattern, and again the breakout is there. Now coming to the weekly chart, तो दिस इज द VCP पैटर्न, दर नो सच मूवमेंट. वंस यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ये जो विक दिख रही है, इस विक, ये द विक ऑन द बेस व्हाट इट टेल, इट एक्चुअली टेल दैट द स्टॉक is going up, but some the people who stuck at this level, they will start selling the stock. तो इन लोगों की बेचने की वजह से विक बन गया, उसके बाद जो एक्चुअली बाइंग थी वो आई. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, this is just forming jiddi, or you can say humble type pattern. Now again the soldiers are lying, and it will go like this only, right? आप डेली पे देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द फर्स्ट ब्रेकआउट, दिस इज द सेकंड ब्रेकआउट, एंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस लाइन इज योर रेजिस्टेंस, और यू कैन से स्टेज 3. ठीक है, दिस इज योर स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, एंड दिस इज योर अगेन stage 4. Again the stock is under the accumulation. Once the accumulation happen, the stock will again enter into the stage 2 advancement phase, and the same thing, same cycle will repeat. ठीक है, so this is your VCP pattern. A more example I will share you in the group. Now coming to the visualization technique. देखिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक इज नथिंग, इट जस्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट एक्चुअली द मार्केट इज गिविंग यू. यू हैव टू कंपेयर बोथ द थिंग्स. तो फॉर दैट रीजन, इफ यू हैव टू कंपेयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू नीड ए रेफरेंस थिंग, राइट, टू कंपेयर इट विद द रेफरेंस थिंग. तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ बजाज हिंद शुगर का. टुडे आई एम सिटिंग इन द लाइव मार्केट, तो आई थिंक कैंडल्स विल मूव. ओके, तो दिस इज योर बजाज हिंद शुगर चार्ट. तो नाउ लेट मी ड्रॉ माई एक्सपेक्टेशन. द स्टॉक इज फॉर्मिंग ए गुड VCP टाइप पैटर्न कह सकते हो आप, या एक गुड मतलब कंजस्टेड पैटर्न बन चुका है, और दो बॉक्स ब्रेकआउट भी हो चुका है, एंड योर RSI इज नियर 70. तो क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मंथली चार्ट है, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे, तो दिस इज अ जॉनी लीवर पैटर्न, एंड द breakout happened, that is 52% and the 84%. So here my visualization technique is saying that इस मंथ या नेक्स्ट मंथ इस तरह की कैंडल यहाँ पे आ सकती है. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट सेव दिस कैंडल, एंड ऑन डेली चार्ट अभी आप पता करो कि क्या ऐसी कैंडल बन सकती है किसी केस के अंदर. तो यू विल फाइंड दैट द स्टॉक इज व्हाट हैपनिंग इन विद द स्टॉक इज, द स्टॉक, ये जो आपका बॉक्स का लाइन था, इसको एज ए रेजिस्टेंस लेके वो आपका नीचे गिर रहा है, एंड अगेन कमिंग टू द सपोर्ट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, सपोर्ट तक आ रहा है एंड अगेन ऊपर जा रहा है. राइट नाउ अगेन द स्टॉक इज फेसिंग द रेजिस्टेंस एट द सेम लेवल. वंस दिस रेजिस्टेंस विल ब्रेक, राइट, तो द स्टॉक विल फुलफिल व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द मंथली चार्ट. जो हमने यहाँ कैंडल बनाई थी उस तरह की चीज़ को फुलफिलमेंट कर सकता है. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जस्ट लाइक पीसीबल मूव, जो भी आप मेरे स्टॉक देखना, उनमें हमेशा मेरा क्या टेक्निक रहता है, सिंपल एक टेक्निक रहता है, आप मंथली चार्ट बना दो. ठीक है, आप खुद अपना मंथली चार्ट बना दो. तो जब ये इस तरीके से मूव किया था, दिस इज अ हम्बल पैटर्न, तो आई जस्ट मेड दिस कैंडल like this. Now what is happening, this is your box top line 348. तो 348 will act as a resistance for a timing. तो अगर आप देखोगे तो you will find in daily chart, then this is a good VCP pattern and the stock is coming out. एक अच्छे खासे मतलब उस पैटर्न के बाद ही निकला, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, ये आई थिंक आज ही इस लेवल को टच करके वापस से नीचे की तरफ आया मतलब वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए पहले, दे विल सेल द क्वांटिटी. नाउ व्हाट सम टाइम इट विल हैपन, फॉर एग्जांपल आई सजेस्टेड दिस स्टॉक आउट, आई थिंक यहाँ पे कहीं सजेस्ट किया होगा शायद, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट समझ के यहाँ दिया होगा. तो सम टाइम द थिंग्स विल नॉट गो
as per you. So what you need to do, you just need to wait and watch कि whether the stock is फॉर्मिंग दैट पैटर्न व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और नॉट. तो कई लोगों ने मेरे से ट्विटर पूछा था कि सर ये तो नीचे गिर रहा है, क्या करें, ये नहीं करें. तो मैंने उनको बोला था देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. मतलब पॉट ये तो मार्केट गिरा था 3 दिन तो इसलिए नीचे आया, राइट. फिर स्टॉक बिल्कुल कंजस्टेड ही हो चुका था, राइट. तो अभी स्टॉक के पास जगह नहीं था, तो फॉर दैट रीजन द स्टॉक इज गोइंग अप. सिंपल सा लॉजिक है, राइट. दिस इज द वॉलेटिलिटी. टाइटनेस ही इतना है कि स्टॉक जाता कहाँ पे. तो नाटको फार्मा जो मैंने लिया है आज, उसके पीछे भी सिंपल सा यही लॉजिक है, ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है. जस्ट इमेजिनेशन, दिस इज माई इमेजिनेशन व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. व्हाट यू इमेजिन विल ऑलवेज गो राइट, ठीक है. तो दिस इज माई इमेजिनेशन, दिस इज व्हाट आई एम फॉर्मिंग जिद्दी पैटर्न इन माई माइंड, एंड इट विल go like this only, right. So not this only, but this is what I am expecting. After Jiddi pattern, such type of candle normally come into the market, and your RSI is already above 70, so you may see a good momentum candle. Let's see, this is what I am imagining. Maybe it fulfill or not, it's everything is in market hand. And if you see the monthly chart, तो monthly chart is quite cool, ठीक है. वो बॉक्स ब्रेकआउट हो चुका है. कैसा बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 वीक ब्रेकआउट के बाद साइडवे हुआ, एंड देन आई थिंक अपन ने जो वेबिनार लिया था लास्ट, सेम थिंग आई रिपीटेड. वंस द ब्रेकआउट हैपन ऑन मंथली चार्ट एंड 3 to 4 मंथ साइडवे, तो वो ब्लास्ट होता है. तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग. तो दिस इज द सेकंड मंथ ऑफ ब्लास्ट. सो लेट्स सी वेयर द स्टॉक्स गो. तो द स्टॉक इज टेलिंग द अप ट्रेंड chart is intact. So I was just waiting on the daily chart to make the position. So I find today that this is a good time to enter into the stock, because not much space left with the stock to decide its fortune. So let me share a few more example. For example, if you are connected with me 4 to 5 months back, so that time I was bullish on Hind Copper and Metals. The logic was simple, ठीक है. This candles at that time, this candle is what I visualize actually, and why it's simple for me to visualize is because after the breakout, the humble pattern formation, and I just made a one type as such type of candle in my mind, and I was just waiting whether it will be true or not. So this is the time, I think November 23. चलो डेली पे देखते हैं, ठीक है. तो नवंबर 23 मतलब अराउंड यहाँ पे. तो यहाँ पे जो था वो आपका ये ब्रेकआउट आया था, फ्रेश ब्रेकआउट, एंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट द स्टॉक इज फॉर्मिंग जिद्दी पैटर्न, एंड द अप ट्रेंड कंटिन्यू, एंड इट विल गो लाइक दिस ओनली, राइट. एंड आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, जब भी स्टेज 2 आपका ख़त्म होता है तो बिग मूव्स आते हैं हमेशा लास्ट में. तो यहाँ पे आप देखोगे बिग मूव्स आए, then the stock go into the stage 3, then this is your stage 4, again this is your stage 1, this is your stage 2. again यहाँ पे देखो सेम चीज़ जो आपको मैंने हैग में दिखाई थी कि ये स्टेज 3 चल रहा था, तो स्टेज 3 का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो विद इन नेक्स्ट डे फेल हो गया. आप ब्यूटी देख रहे हो मार्केट की, चाहे ऑपरेट हैग को भी क्या वही बंदा कर रहा है जो हिंद कॉपर को कर रहा है? नो, आंसर इज नो. बट दिस इज द पैटर्न विच, ये पैटर्न कोई ऐसा बुक्स में आपको नहीं मिलेगा. दिस इज अ पैटर्न जस्ट राइट डिस्कवर्ड ऑफ एवरी फेल्ड ट्रेंड. जब भी मैंने देखा कि फेल्ड कोई ट्रेंड फेल होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इस तरह का कैंडल बनाता है. द स्टॉक विल ट्राई टू डू द ब्रेकआउट, एंड द ब्रेकआउट विल फेल ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, एंड इन 99 केसेस योर RSI विल बी जस्ट टचिंग द 70 एंड रिवर्सिंग बैक टू द डाउन ट्रेंड. ओके, तो दिस हैपन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग इज हैपनिंग. इट्स ए मतलब it's in a accumulation zone, or whatever it is, you can say accumulation zone, but we are not interested in the accumulation. We are not the fundamental analyst. Let the people accumulation या value investing जिनको करनी है उनको आप buy करने दो. Once they are done, then we will come. Okay, so this is how you can visualize the candle, but again I am repeating, you can visualize the candle only on monthly chart, not on daily or such type of chart. So what is happening, this is what I expected. तो ये सब हुआ, then this is your जिद्दी pattern, right,
एंड जिस भी पैटर्न का यू कैन एक्सपेक्ट दिस कैंडल, तो ऑलरेडी बनी। अभी क्या हुआ, इतना ऊपर आने के बाद नाउ राइट नाउ हिंद कॉपर इज फॉर्मिंग द हम्बल पैटर्न। अभी हम्बल पैटर्न बनेगा, उसके बाद अगेन इट में गो लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज द कैंडल जस्ट फॉर्म ऑन द मंथली चार्ट। नाउ लेट्स चेक द फिबोनाची पैटर्न एंड दिस थिंग्स। ठीक है, फिबोनाची पैटर्न जो है वो दिस आई थिंक लेट मी शो यू वेयर इट इज फर्स्ट। तो इफ इन द चार्ट यू विल सी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, ऑल्ट एफ शॉर्टकट है, तो आप ऑल्ट एफ दबाओगे तो ये इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, मोस्टली आई डोंट यूज द शॉर्टकट, आई सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड यूज दिस। ठीक है, व्हाट हाउ टू यूज द फिब, first I will teach you that part, and then how to find the targets, with that I will discuss with you. तो what you need to do, जब आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, उसके टॉप पे जो भी टॉप पॉइंट है, इसको विक को आपको कंसिडर करना है, इस पे क्लिक करो और नीचे इस पे विक पे क्लियर करो। ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट पे टच किया और एक इस पॉइंट पे टच किया, तो ऑटोमेटिकली द स्टॉक विल गिव यू द टारगेट्स एंड द स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अभी आप ब्यूटी देखो, और नॉर्मली क्या होता है, ये रेशो क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, जस्ट हाउ टू यूज इट, जस्ट इट्स ओके आई थिंक। तो अभी क्या होता है, यू विल फाइंड दैट फ्यू नंबर्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। इसको मैं लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो 0.786, 0.618, 0.5 इस तरह के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। ऊपर सिमिलरली 1.618, 2.618 एंड 3.618। इन माई लैंग्वेज आई विल से 1 to 1.618 इज ए फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, 1.6 से 2.618 दिस इज अ सेकंड फ्लोर एंड दिस इज योर थर्ड फ्लोर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस जोन ओनली एज ए ट्रेडर। फर्स्ट आपका फॉर टारगेट, मतलब स्टॉक को ऊपर जा रहा है तो आपका, तो वी आर इंटरेस्टेड दैट द स्टॉक विल मूव इन दिस, या तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और द थर्ड फ्लोर। ठीक है, एंड व्हेन द स्टॉक इज फॉलिंग, तो वी विल टेक 0.618 एज ए सपोर्ट, कि इसके नीचे स्टॉक अगर जा रहा है, इट शोज स्टॉक में अंदर स्ट्रेंथ कम है। तो 0.618 जो होता है वो एक गोल्डन रूल होता है। तो लेट्स कमिंग बैक अगेन टू द फिबोनाची। फिबोनाची पैटर्न इज द डिस्कवर्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियंस ओनली, बट उसका बाद में कुछ विदेशियों ने चुरा लिया था, फिर इसका और स्टडी करके, मतलब 300-800 साल पहले जब ये एक्चुअली लॉन्च हुआ, उससे 300-800 साल पहले इंडिया के ऋषि मुनीज और जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर कर दिया था। तो दिस इज़, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट में काम करता है फिबोनाची पैटर्न, ये आपके लाइफस्टाइल, नेचर सब में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर आप कोई ब्यूटीफुल फेस अगर आप देखने जाओगे ना, तो वो इस तरह का होगा ना, तो अगर आप इस चीज़ को, लेंथ को और इसको अगर आप डिवाइड करोगे, तो दिस रेशो विल कम इनटू द 1.618 के अराउंड। ये रेशो अगर लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेथ करोगे तो वो 1.618 आएगा। ऐसा माना जाता था कि जिसका रेशो ये आ रहा है तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। नॉट ओनली ऑन द फेस थिंग, अगर आप कोई पत्ते की लीव भी देखोगे ना, तो उसका शेप मोस्टली इसी, इसको नापना और इसको मेजर करना, तो इट विल मोस्टली सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ 1.618। तो अगर आप ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर भी आप डिवाइड करेंगे ना, मेल और फीमेल जो बीज होती है, तो दिस अगेन अगेंस्ट द मेल और फीमेल, आप थोड़ा नेट पे पढ़ लेना, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो कहना का पर्पस ये है मेरा कि दिस फिबोनाची इज़ नॉट जस्ट फॉर द मार्केट। ये मार्केट में तो बहुत बाद में आई ये चीज़, क्योंकि मार्केट भी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी से चलता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो मार्केट है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी से चलता है, और ये जो फिबोनाची पैटर्न है ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी ही बताता है, एंड फॉर दैट रीजन इट इज़ वर्किंग गुड ऑन द मार्केट। तो आपको नॉर्मली कैसे यूज़ करना है, नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक किया, इसका टॉप पे एक पॉइंट टच किया, दूसरा पॉइंट नीचे इसकी टोची पे बंद किया, और आपको फिर देखना है क्या होता है। अब आप ये ब्यूटी देखो, जो वॉट एवर द चार्ट इज, दिस इज आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक, मैंने तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ा, इसके आगे तो मैंने बात ही नहीं करी। अभी आगे देखो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। अभी यहाँ से यहाँ के बाद ये धीरे धीरे गया, ये आई थिंक दिस इज योर 0.5, तो 0.5 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, फिर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, देन द स्टॉक्स कम टू द स्टेज 1। अब जैसे ही स्टेज 1, मतलब सॉरी फ्लोर वन के अंदर जैसे ही क्रॉस करने की बात आई, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, तो अगेन ये इसके नीचे आके
सपोर्ट पे चला गया, देन अगेन इट विल गो लाइक दिस, देन हेयर दिस अगेन फ्लोर 1 पे 161 जो था आपका वो रेजिस्टेंस था, एंड आफ्टर दैट इट ब्रेकआउट हैपन, सेकंड फ्लोर में आया, सेकंड फ्लोर का ब्रेकआउट करके फिर वो सेकंड फ्लोर की टॉप पे वेट करता रहा, नाउ इट्स ब्रेक द थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, एंड नाउ एट 392 विल बिकम द रेजिस्टेंस, और वहाँ से वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है. नाउ जस्ट इमेजिन आई जस्ट take the point of 2017 and 20 and still the things are working accordingly. डोंट यू सरप्राइज विद दिस थिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन बात कर रहे हैं 2017 और 20 का रेफरेंस लेके और आज भी वो चीज़ वो स्टॉक फॉलो कर रहा है. तो दिस इज ब्यूटी ऑफ फिबोनाची पैटर्न, राइट. नाउ लेट मी शो यू निफ्टी वेदर इट फॉलोज और नॉट. ठीक है, तो व्हाट यू वांट मी टू टेक, चलो एक काम करते हैं. ठीक है, 2007-8 से तो अभी कोई लेना देना नहीं है ना. ओके, लेट मी शेयर यू विद दिस चार्ट. टेक दिस टॉप एंड टेक दिस बॉटम, राइट. तो मैंने तो सिर्फ ये और ये पॉइंट पकड़े. नाउ सी व्हाट हैपनिंग एट दिस पॉइंट, जैसे रेजिस्टेंस की तरह करेगा तो द मार्केट फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू 0.618 अराउंड, राइट. देन अगेन इट्स गो अप वंस इट कम टू द स्टेज 1. तो मैंने बोला ना आपको फ्लोर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज यहाँ पे क्लियर मूव रहेंगे, रोज ऊपर नीचे नहीं रहेगा. तो दिस इज योर फ्लोर 1. तो जैसा इसका टारगेट अगर आपको निकालना है तो सिंपली अगर आप ये बनाएंगे तो ये लाइन आपको बता देगी दिस इज द फर्स्ट टारगेट 0.618. तो निफ्टी का 0.618 था आपका 8767 व्हेन द निफ्टी वॉज 6339. तो यहाँ से कंटिन्यूसली वहाँ टच किया एंड नाउ इट टेकिंग इट एज अ रेजिस्टेंस, फिर फॉल हुआ, देन अगेन रेजिस्टेंस फॉल, वंस इट एंटर इनटू द जोन ऑफ सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अंदर फिर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा. तो ये कोविड का टाइम आया तो कोविड के टाइम में एग्जैक्टली उसी लेवल पे उसने सपोर्ट लिया एंड अगेन दिस थिंग हैपन, देन अगेन वो नेक्स्ट स्टेज चला गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अभी अपना ये इंडिकेटर तो यहीं पे खत्म हो गया, तो अपन इसको आगे आगे से अब ड्रॉ करेंगे. लेकिन आपने ब्यूटी देखा कि जो मैंने 2007 की जो डेटा को यूज़ कर रहा हूँ स्टिल दैट इज मार्केट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली, राइट. तो अभी क्या करना है, अभी ये तो एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है तो अपन एक काम करते हैं, कोविड वाले टाइम को ले लेते हैं. इसका टॉप ले लो, इसका बॉटम ले लो. अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ स्टेज मतलब लेवल 2 में है, लेवल 2 में अगेन इसका सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो 4 महीना लगा. 4 महीने के बाद आप वापस स्टेज 3 में गए. राइट नाउ वी विल इन दिस जोन, राइट. ऑन मंथली चार्ट थर्ड लेवल में हो. नाउ 25,380 विल बिकम द रेजिस्टेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स आप 25,000 के आसपास निफ्टी का ये रेजिस्टेंस रहेगा. तो यहाँ पे थोड़ी समस्या आ सकती है. अगर ये क्रॉस होता है तो वी विल सी दिस वन 28,000. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम. तो ये तो मैंने मंथली पे यूज़ किया, आप इसको डेली पे वीकली पे यूज़ करोगे तो भी आपको क्लियर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब इसमें ना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ. आपको डाउट रहेगा कि आपने यही पॉइंट क्यों लिया, आगे वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया. आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्विंग हो ना, कोई भी लोअर स्विंग हो या अपर स्विंग हो, कोई भी स्विंग का आप एक टॉप और एक बॉटम पकड़ सकते हो. इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने यही लेना है वही लेना है. फॉर एग्जाम्पल ये डेली आई थिंक वीकली चार्ट है ना, तो आप वीकली पे मैं चलो ये और ये स्विंग ले लेता हूँ, ये और ये, ठीक है, ये और ये लिया. तो यू विल फाइंड कि देखो यहाँ पे इस जोन में आया तो 2 बार रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट भी एक्जैक्टली उसी बॉक्स पे लिया एंड देन अगेन एंटर इनटू द स्टेज 2. फिर स्टेज 2 पे भी इसी लाइन के पास अगर रेजिस्टेंस दिया, जैसे ये क्रॉस हुआ तो इट विल बिकम ए सपोर्ट. तो यहाँ सपोर्ट बन गया, देन अगेन डायरेक्टली ये पैसेज के थ्रू यहाँ गया, देन दिस इज लाइक हाउ दिस हैपन. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द टारगेट्स. तो मोस्टली केसेस में आपको क्या करना है ना, अगेन आई विल ड्रॉ. अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे है, इसलिए दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम आई बाय द रीटेस्ट स्टॉक. सो दैट रीज़न क्या है, वो जो रीटेस्ट होता है ना वो मुझे एक्चुअली ये बता देता है कि वो स्टॉक कितना नीचे तक आगे रीटेस्ट कर गया. अगर वो रीटेस्ट बहुत डीप है तो आई एम नॉट दैट मच बुलिश ऑन द स्टॉक. अगर वो शेलो रीटेस्ट है तो आई एम बुलिश ऑन दैट स्टॉक. एंड वेंस द स्टॉक्स क्रॉस दिस जोन, तो यहाँ से लेकर यहाँ 1.618 का जो जोन होता है दैट विल बी द टारगेट फॉर मी एट लीस्ट. ठीक है, अभी इस बात वही है कि आप किस टाइम फ्रेम पे काम करते हो. अगर आप मंथली चार्ट पे टाइम फ्रेम पे काम करो तो आपका 1.618 बड़ा होगा, वीकली पे करो थोड़ा छोटा होगा, डेली पे होगा तो उससे थोड़ा छोटा होगा. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक, लेट मी टेक सम एग्जांपल, कुछ भी ले लेते हैं अपन.
सपोज टैगा ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर टैगा वीकली चार्ट, राइट। तो हाउ टू डेली में देखना है टारगेट, ठीक है। तो आप कोई भी स्विंग का हाई लो पकड़ लो। फॉर एग्जांपल मैं इस स्विंग का पकड़ लेता हूँ, यहाँ से ये लो ये है, राइट। तो दिस इज द स्विंग लो, ओके। तो नाउ दिस पॉइंट 1916 इज रेजिस्टेंस फॉर इट। तो आज आई थिंक ये गया भी था, आई थिंक 900 तक गया था, तो यहाँ से वो फॉल आया। नाउ वंस इफ इट क्रॉस दिस लेवल ना, क्लोज अबव 1926, माई टारगेट विल बी 2091, ओके। ठीक है, तो 209 वंस इट क्रॉस दिस लेवल, तो व्हाट योर टारगेट शुड बी 2091। देन यहाँ पे स्टॉक को आपको बिहेवियर वेट करना, वॉच करना है किस तरीके से वॉच कि वो बिहेव करता है। इफ एवरीथिंग इज ओके, वो साइड वे हो रहा है, मतलब जो साइड वे मतलब जिद्दी पैटर्न, वाई आई टोल्ड यू द जिद्दी पैटर्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जिद्दी पैटर्न इज द पैटर्न विच इज टेलिंग यू दैट स्टॉक इज नॉट रेडी टू गिव अप, बट इट इज जस्ट वांट टू कूल ऑफ बट नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द प्राइस। वो प्राइस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं, वो बोला मैं नीचे नहीं आऊंगा। कूल ऑफ होना है कोई बात नहीं, मैं साइड में खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं नीचे नहीं आऊंगा। तो फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक की अगर बात करें, तो ये यहाँ पे सपोज आया और यहाँ पे इस तरीके से ये अगर वेट कर रहा है, तो इट शोज दैट स्टॉक इज रेडी टू मूव इनटू दिस जोन। और जैसे इस जोन की तरफ मतलब प्रोबेबिलिटी शो करता है, तो योर टारगेट विल बिकम, नेक्स्ट टारगेट विल बिकम द 2374, राइट। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज हाउ इन मोस्ट केसेज आई फाइंड द टारगेट। देन नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टॉप लॉस, और लो कितना बन सकता है उसकी अगर एक बार हम बात करते हैं। देखो मोस्ट केसेस के अंदर क्या होगा, जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, तो वो ए बी सी फॉर्मेशन में जाता है। ए बी और जो सी होती है वो थोड़ी ब्रूटल होती है, राइट, ठीक है। और उसके बाद बट वो ब्रूटल होती है, बट आरएसआई में आप देखेंगे वो ठीक है, आरएसआई मॉडल में आएगा तो वो थोड़ा शैलो, वहाँ पे वो डाइवर्जेंस बिल्ड होता है, दैट विल कम इन टू दैट पार्ट। तो हाउ टू फाइंड आउट हाउ मच मार्केट कैन गो लो इज मोस्ट केसेस वो 1.618 का जो लेवल होता है ना नीचे, डाउन साइड नेगेटिव साइड, उसको ब्रेक नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपने इंडिकेटर लिया, अभी मैंने आप ऊपर नीचे टच करते थे, इसको उल्टा करना है। यू हैव टू टच फर्स्ट दिस पॉइंट एंड अगेन द टॉप पॉइंट, राइट। तो इसको इस तरीके से आप टच करोगे तो यू विल फाइंड दैट द मार्केट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट विल फॉल टू दिस लेवल ओनली। मतलब वो नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे आएगा, जैसे कई बार होता है ना मार्केट गिरता है तो मैं बोलता हूँ कि बस ये बॉटम है, दिस इज द बॉटम। तो दिस इज हाउ आई फाइंड द बॉटम इन 99% या 98% केसेस। दो मार्केट या स्टॉक जो है वो 1.618 लेवल को टच करेगा नीचे, और उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल तो ऐसे मुझे ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन चलो देखते हैं कहीं। जैसे मान लो ये मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, इंस्टेड ऑफ टचिंग द फर्स्ट पॉइंट, ये जो है लो इसको टच करो, और ये ऊपर का जो हाई है इसको टच करो, ठीक है। ये लो टच किया, ये हाई टच किया, तो अभी आप ये देखो कि वापस ये बाउंस किया अपसाइड, राइट। फिर हर बार ये लोअर लो बना रहा है, एंड इन लास्ट जो भी डाउन ट्रेंड का आपका जहाँ से मतलब बॉटम फॉर्मेशन हुआ, दैट इज योर अराउंड 15,660, मतलब ठीक है थोड़ा पॉइंट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे रहेंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम डिप। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक है। अगर आपको इतना दूर का नहीं लेना है तो यू विल टेक दिस स्विंग। देखो लास्ट स्विंग का लिया मैंने, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है ना। इस पॉइंट को यहाँ पे कर लो, या इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप। मैंने समझ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया, तो एग्जैक्टली इट इज टचिंग द 1.618, क्योंकि यहाँ पे विक थी ना ओपनिंग की, अगर आप करोगे तो एग्जैक्टली वो टच करेगा। वो तो ओपनिंग कैंडल का इस वजह से था। दिस इज हाउ ये और ये प्राइस पकड़ के आप ये पता कर सकते हो कितना बॉटम मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज हाउ वी फाइंड द मार्केट बॉटम कहाँ बनता है। लेकिन ठीक है, सिर्फ आप एक गैस कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है, वो हो सकता है कि यहाँ तक भी जा सकता है, 2.618 तक भी जा सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दिस ओनली। लेट मी शेयर few more example to make it more clear.
ठीक है, तो दिस इज योर रिलायंस चार्ट। ओके, तो रिलायंस कैसे बिहेव करेगा वो पता करना, कोई भी स्विंग आप पकड़ लो। तो आई एम टेकिंग दिस स्विंग एंड दिस स्विंग, ये नीचे का बॉटम पकड़ लो, दिस इज दिस। तो यहाँ पे जैसे स्टेज वन में एंटर हुआ तो इट्स अ क्लीन मूव टिल दिस लेवल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलायंस इज कंसोलिडेशन एट दिस फर्स्ट फ्लोर का जो रूफ है, मतलब वहाँ पे ये इसको कर रहा है। उसके बाद जो मूव आया भी था, दैट मूव डायरेक्टली टेक द स्टॉक टू द दिस लेवल 3216 एंड 3306 अराउंड, इसका वो था, तो वहाँ पे कंस्टेंट था। तो इन केस इफ यू आर होल्डिंग दिस एंड द स्टॉक इफ ब्रेक दिस लेवल, मतलब 2883, देन इट विल बिकम योर स्टॉप लॉस। इसके नीचे गया तो इट विल कम टू दिस फ्लोर, राइट। तो और यहाँ पे स्विंग करता है तो अगेन इट विल बिकम द रेजिस्टेंस 3323 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट, एंड इफ इट क्रॉस देन द next target should be 3619. So this is how actually I find the target. Let me share more example. Tata Motor. ठीक है, अभी जैसे ये पॉइंट है, तो ये डाउन ट्रेंड में था, तो अगर आपको एक्सपेक्ट करना है कितना डाउन ट्रेंड जा सकते हो तो आप कोई भी स्विंग पकड़ लो। यहाँ पे पकड़ा और उल्टा इसको पकड़ा, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। अभी आप ब्यूटी देखो, अपन ने कौन से पॉइंट पकड़े सिर्फ वीकली में, ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ा, और एक्चुअली वो ठीक 1.618 के उसको एग्जैक्टली बिल्कुल आप देखो ना, दिस कैंडल लो इज अराउंड 27.9 एंड दिस इज 27.82, एग्जैक्टली वहीं से टच होकर वो चीज़ रिवर्स हुई है वीकली पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द बॉटम यूजिंग द फिबोनाची इन एनी स्टॉक। देखो टाइम एक्यूरेसी कौन सा लेना है, इसका सिंपल सा फंडा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बिगर द टाइम फ्रेम बिगर योर द एक्यूरेसी ऑफ योर इंडिकेटर और वॉट एवर एनालिसिस यू आर डूइंग। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर कैंडल को विजुअलाइज करना है तो वो भी आप सिर्फ मंथली पे इसलिए कर पाओगे, डेली के अंदर इट्स नॉट दैट मच ईजी, राइट। तो अगेन आई एम कमिंग टू दिस पार्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज this is your weekly chart. So let's take it this swing, ठीक है। आई थिंक दिस कैंडल आई एम इग्नोरिंग, दिस इज 4 जून कैंडल, राइट। तो थोड़ा नीचे लाते हैं। तो व्हाट एक्चुअली यू फाइंड, लास्ट वीक एग्जैक्टली उसने इसी लाइन को टच किया था टाटा मोटर ने, और ये दिस इज योर लेवल फ्रॉम 708 टू दिस, एंड नाउ दिस इज स्टॉक इज इन द second floor, and second floor target is 861. So 861 will be your target, and the low of this candle is this candle low is around 763. So 763 will become your stop loss, ठीक है। So this is how you can find the target using this. Now coming to the daily chart. तो डेली चार्ट के अंदर तो सिंपल है, वही जो आपने वहाँ लगाया वही लगाओगे, सेम ही चीज़ आएगी, वो यहाँ लगाओ आप यहाँ लगाओ, सेम वही स्टेज 2 के अंदर स्टॉक है, एंड योर टारगेट शुड बी 883। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टारगेट। नॉर्मली जो लो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं या जो थोड़े मतलब अलग तरीके से चलते हैं, ऑपरेटर उसको मूव कर सकता है इजीली, कोई 1 या 2% ऑपरेट कर सकते हैं इन सच टाइप ऑफ चार्ट, मे बी थिंग्स विल नॉट वर्क, बट फॉर दैट रीजन यू कैन अवॉइड टू पुट दिस थिंग ऑन सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, राइट। नाउ लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ नितिन स्पिनर, ठीक है। तो what is happening in Nitin Spinner, coming to the weekly chart, take it this high and this low, ठीक है। तो what is happening, the stock is in stage first floor, तो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हुआ आपका 393 से, तो स्टॉक आपका आराम तक 450 तक जाएगा। एट 450 द स्टॉक विल फेस द रेजिस्टेंस, इफ इट क्रॉस प्रॉपर्ली देन इट विल गो टू द 557 जोन, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। Now coming to the entry and exit point,
देखिए एक्चुअली क्या है, मार्केट के अंदर एंट्री करना तो आसान है, एग्जिट में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो एग्जिट मैंने हमेशा मॉड्यूल 2 के लास्ट में क्यों रखता हूँ, बिकॉज तब तक मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपको एग्जिट करना है। तो फर्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बोला कि व्हेन टू एग्जिट इज एंट्री, एवरीबॉडी नोज। एग्जिट इज लोअर साइड, दो तरह की एग्जिट होती है, एक तो होते प्रॉफिट बुकिंग में एग्जिट, ठीक है, दो तरह की एग्जिट हुई, एक तो प्रॉफिट बुकिंग में एग्जिट और एक स्टॉप लॉस में एग्जिट, राइट। तो प्रॉफिट में आपको जो एग्जिट करना है दैट इज यू कैन फाइंड आउट यूजिंग द फिबोनाची पैटर्न व्हाट यू हैव टोल्ड यू। स्टॉप लॉस में आपको यूज़ करना है तो सिंपल सी दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि जब भी ब्रेकआउट कैंडल जो थी बनी होगी उससे पहले विद गुड वॉल्यूम, उसका जो लो होगा दैट लो शुड बी योर स्टॉप लॉस। आई रिपीट, डाउन साइड के अंदर अगर आप लॉस उसके अंदर हैं तो आपको स्टॉप लॉस तब लेना है जब आप जो उससे पहले जो ब्रेकआउट कैंडल है आपने जो भी बाय की, खुद ने ब्रेकआउट कैंडल बाय की है, तो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है दैट शुड बी योर, इसके नीचे अगर हम क्लोज देते हैं एनी क्लोज बिलो दिस लो शुड बी योर स्टॉप लॉस। इंडियन मार्केट के इसका आप सब एक क्लोज मत लेना, दो क्लोज ले लेना, बिकॉज यहाँ पे कई बार क्या होता है स्टॉक को ऐसे ही बिठा दिया जाता है और उसके बाद उसको लेके जाता है। तो कंसिडर टू क्लोजेस बिलो दिस कैन, वन और टू, मतलब एक एक क्लोज हो रहा है तो यू शुड बी कॉशियस अबाउट द सिचुएशन, एंड अगर सेकंड क्लोज भी अगर नीचे दे रहा है तो यू हैव टू बुक योर पोजीशन एंड एग्जिट द स्टॉक। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर ये बॉक्स की जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, दिस रेड लाइन वर्क एज ए सपोर्ट ऑल्सो। ग्रीन लाइन तो आपको समझ गया, ब्रेकआउट करना है, जॉनी लीवर हिलेगा मिलेगा, मतलब ये जॉनी लीवर, ये आपका जिद्दी और हम्बल, ये सब ग्रीन लाइन को लेके बना है। तो रेड लाइन किसके लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रेड लाइन? दिस रेड लाइन विल गाइड यू टू टेल वेयर द स्टॉक इट्स एट सपोर्ट और इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेकआउट, द स्टॉक इज कमिंग टू द सपोर्ट लाइन। अब ये दिस इज द सपोर्ट, इन केस इफ द स्टॉक गो बिलो दिस देन दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। आप देखो मोस्टली केसेस में वहीं से ही रिवर्स होगा अगर वो अप ट्रेंड स्टॉक है तो, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ये देखो दिस इज द प्लेस वेयर इट ब्रोक एंड आफ्टर दैट इट विल बी डैमेज टू मच। और जब तक वो अप ट्रेंड के था अंदर था तो नॉट ए सिंगल टाइम द स्टॉक हैज ब्रोकन दिस बॉक्स लो, बॉक्स सपोर्ट, राइट। तो आपको बताया जैसा कि आपको स्टॉप लॉस आपका दो हो जाएगा, या तो आपको जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो लेना है, या फिर जो ये बॉक्स का अगर नीचे का रेड लाइन है ये सपोर्ट था, इसके नीचे अगर दो क्लोजिंग देता है तो यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस। एक या दो क्लोज देता है दैट डिपेंड्स। देखो अगर एक क्लोज दे रहा है लेकिन उस दिन मार्केट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में, तो आई इग्नोर, बट अगर दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है उसके बाद भी स्टॉक नीचे क्लोज दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आर सिस्टम, आई बुक द स्टॉप लॉस इन आर सिस्टम, राइट, दिस टाइम इसने मुझे कमा के भी बहुत अच्छा दिया था, बट ठीक है। द रीज़न क्या था कि व्हेन आईटी स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, राइट, दिस स्टॉक इज नॉट मूविंग विद दैट पोटेंशियल, फॉर दैट रीजन आई थिंक यहाँ पे मैंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया था, एट दिस पॉइंट आई कट माई ऑल पोजिशन, राइट। तो समटाइम दिस विल गाइड यू। अब एक्चुअली रीज़न क्या था मेरी बैट का, बिकॉज द बॉक्स आर फॉर्मेशन इज अप साइड, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है, स्टॉक नहीं था आपने उसके हिसाब पे, तो स्टॉक इज did the breakout at this point, right? तो this is how you have to find out। बट आप ब्यूटी देख रहे हो यहाँ पे एक बार भी RSI 70 के जोन में नहीं गया, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ थी ही नहीं एक्चुअली। नाउ कमिंग टू, अब विन द टेली लिंक की बात करोगे, आई सजेस्टेड द स्टॉक एट दिस लेवल, राइट, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग योर जिद्दी पैटर्न, बट ठीक है अनफॉर्चुनेटली स्टॉक 3 से ज़्यादा दिन नहीं चला, बट स्टिल द स्टॉक इज अबव योर बॉक्स लाइन, राइट, बॉक्स के ऊपर था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन इट इज फॉर्मिंग अ जिद्दी टाइप ऑफ पैटर्न, साइड वे हुआ, मतलब बॉक्स ब्रेकआउट देन साइड वे, देन इट्स लाइक दिस 2 डे साइड अगेन इट्स इज डूइंग दिस टाइप ऑफ मूव, राइट। तो आप वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज दिस इज योर वीकली ब्रेकआउट, राइट, ऑल टाइम हाई एंड द वीकली ब्रेकआउट, ये आप देखेंगे इतने बड़े टाइम जोन का ब्रेकआउट है। This is the monthly breakout. You know the power of monthly breakout. So after so many months of consolidation, this is the breakout. And for that reason, stock is from 2400 to 3200 now. Clear? तो आपको समझ में आ गया कि एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। अभी जैसे लेट मी शेयर यू दिस गोवा कार्बन, ठीक है,
तो गोवा कार्बिंग की ट्रेड के पीछे सिंपल लॉजिक सिंपल सा था, बिकॉज द पीसीबीएल हैज़ डिड ए गुड थिंग. तो फॉर दैट रीजन आई जस्ट बॉट दिस, बिकॉज नॉर्मली केसेज यू विल नॉट फाइंड मी टू बाय सच टाइप ऑफ स्टॉक्स. मैं कभी भी ऐसे डाउन ट्रेंड स्टॉक बाय नहीं करता. बट द थिंग इज कि ये पीसीबीएल चला, तो दिस इज अ peer ग्रुप. फॉर दैट रीजन आई बैट ऑन दिस कंपनी कि वेदर इट विल ऑल्सो फॉलो. बट ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इशू क्या हुआ देखो यहाँ. इसने फॉलो किया उसको, ये गया भी ऊपर, उसको जाना भी था, मतलब गुड बाइंग इज हैपनिंग इन दिस कंपनी. बट व्हाट एक्चुअली हैपन, द पीपल हु स्टक एट दिस लेवल, व्हाट दे विल डू, वंस द प्राइस विल बाउंस टू दिस लेवल, तो दे विल सेल इट ऑफ. ठीक है, अब क्यों, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये स्टॉक ने इसी को टच किया. दिस इज एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड द रेड लाइन एक्ट एज ए सपोर्ट. स्टॉक एग्जैक्टली इस पॉइंट तक गया एंड द पीपल हु स्टक जस्ट बिफोर दिस स्विंग, दे आर ऑफलोडिंग देयर क्वांटिटी एट दिस पॉइंट. एंड फॉर दैट रीजन अगर ये स्टॉक को अपना यहाँ से चार्ट चेंज भी करना है, तो इन लोगों को उसको झेलना पड़ेगा. एंड टू अवॉइड सच टाइप ऑफ झेलम झाली, जो मैंने आपसे शेयर किया कि ऑलवेज ट्राई टू बाय द स्टॉक नियर द ऑल टाइम हाई, बिकॉज उसकी वजह से ये सब लोगों को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अभी एक शेयर की बात करता हूँ मैं, एलिकास्ट. इसको आज मैं बाय करने की मेरी बहुत इच्छा थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट आई अवॉइडेड दिस स्टॉक. सिंपल सा रीज़न है, द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड. ओके, एंड आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑल्सो, एंड द स्टॉक इज फॉर्मिंग द आपका जिद्दी पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, तो यू कैन मेक ए एंट्री इन दिस स्टॉक. ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि एंट्री अभी नहीं बना सकते. एंट्री का देखो, मार्केट इज़ अ डायनेमिक थिंग. मार्केट इज जस्ट नॉट लाइक ए थ्योरेटिकल बुक कि ये प्राइस आ गया साहब एंट्री ले लो, ये प्राइस आ गया साहब एग्जिट ले लो. ऐसा नहीं है. आप 1-2% ऊपर भी ले सकते हो. मैं कहीं 10% ऊपर भी स्टॉक को ले लेता हूँ. इफ देर इज ए गुड लेफ्ट साइड बेस ना, तो समटाइम आई मेक द पोजिशन एट दिस 10% अप ऑल्सो. इन एम एस टी सी आई डिड दैट, बिकॉज मैंने आपको मॉड्यूल 1 में भी बोला था. मॉड्यूल 1 में भी मैंने यहाँ पे आई थिंक ये लिया था. तो जब दिख रहा था कि भाई इतने महीने का कंसोलिडेशन, और ये 4 महीने का कंसोलिडेशन आफ्टर द जिद्दी पैटर्न इज फॉर्मिंग ऑन दिस, तो इट्स ए गुड थिंग टू टेक ए ब्रेकआउट एयर. अब यहाँ पे कैंडल थी 57 और 58. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 100 मोर देन 100%, तो 14% 15% ऊपर भी कोई आप स्टॉक को बाय लेते हो, तो देयर इज नो हार्म, राइट. तो ऐसा मैंने किया था. तो मे बी एट दैट पॉइंट मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है, देर इज़ नो सच स्पेसिफिक रूल कि आपका एंट्री एग्जिट होना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू द एलोकेशन. ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी कि यही आपका गेम करता है. अगर इफ़ योर एलोकेशन इज़ नॉट प्रॉपर, यू विल नॉट मेक ए गुड मनी इन द मार्केट. तो लेट मी डिस्कस अबाउट द एलोकेशन. आई विल talk in both languages, theoretical as well as practical. So in theoretical, let me come. I think आज बजाज इन चल गया. शुगर सेक्टर इज शोइंग सम स्ट्रेंथ, राइट. अभी थोड़ी देर पहले इसी मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे ना, तो ये मैंने यहीं पे भी शेयर किया था कि दिस इज द कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन मंथली चार्ट, राइट. तो अगर आप देखोगे तो आई थिंक दिस इज द डेली ब्रेकआउट इज आई थिंक हैपनिंग ऑन दिस टुडे इन लाइव मार्केट. तो यहाँ पे दिख रहा है शुगर के अंदर. दूसरी आप शुगर देख लो तो रेनू का भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रही है. मतलब आई थिंक शुगर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं जान है. तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है. तो हम थे एलोकेशन पे. तो कमिंग, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, दवाई पता जाए. एलोकेशन का सिंपल सा रूल है 10% एलोकेशन इन ईच स्टॉक. ठीक है, सपोज आपके पास 1 करोड़ है, आपको 10-10 लाख सब स्टॉक्स में लगाने हैं. एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मैं क्या करूँगा, 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपीज़ आई विल पुट इन एवरी स्टॉक, 10 स्टॉक. तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई डू, आई पर्सनली डू व्हाट दैट आई विल टेल यू. आई विल पुट 2 लाख फर्स्ट फ्रॉम 10 लैक्स. जैसे इस स्टॉक के अंदर मुझे 10 लाख डालना है, तो 10 lakhs में आई पुट 2 लाख फर्स्ट एंड आई सी द बिहेवियर वेदर द स्टॉक इज मेकिंग चार्ट अकॉर्डिंग टू मी और नॉट, मूविंग अकॉर्डिंग टू मी और नॉट. इफ एवरीथिंग इज ओके, तो विद इन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 2 डे 3 डे जब भी सही लगेगा, आई विल पुट रेस्ट 8 lakhs इन दैट स्टॉक. तो नॉट माई एलोकेशन इज 2 लाख, 10 lakhs. ठीक है, वाई 10% एलोकेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्या होगा, सपोज आपका, मान लो सपोज आपका 5 स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगता है. ठीक है,
और आपने 5 स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगता है, दैट स्टॉप लॉस इज 5% ईच। तो व्हाट हैपन, यू हैव 1 करोड़ की आपको 10 पोजिशन है, 10 लाख रुपीज़, एंड इन 5 स्टॉक यू हैव गेट द स्टॉप लॉस ऑफ 5%, तो दैट इज इक्वल टू बी 2.5 लाख रुपीज़ ऑफ लॉस। ठीक है, तो 2.5 लाख का जो आपको लॉस हुआ, अगर आप 1 करोड़ पे देखोगे तो दैट इज जस्ट 2.5% ऑफ कैपिटल लूज ऑफ ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, अगर आपके 5 ट्रेड गलत हो रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको ट्रेडिंग आती नहीं है, या फिर नाउ मार्केट इज शिफ्टिंग द गियर। ठीक है, मेरे साथ यही होता है, अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड काम नहीं कर रहा तो मुझे समझ में आता है नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू डू द ट्रेड, जस्ट पे दिस 2.5 लाख रुपीज एंड सिट ऑन द कैश। क्लियर है? I will not wait for the rest 5 stock to take my stop loss. I better become cautious at this point and I will exit my most of the positions, या फिर I will lighten my position। हो सकता है फिर मैं मार्केट के अंदर से 2-2 लाख की पोजीशन बनाऊं, मैं 10 लाख की पोजीशन नहीं बनाऊं। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी जो भी कैपिटल है, सपोज आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो यू हैव टू बाय 10,000 रुपीज स्टॉक इन ईच, हर स्टॉक के अंदर यू हैव टू डू द 10,000 सॉरी 10,000 या 10,000 ऑफ शॉपिंग, सो दैट क्या है, अगर आपका 5% का स्टॉप लॉस होगा तो दैट इज अराउंड 500, 5 स्टॉक के अंदर भी आपका लग गया तो दैट इज 2500, तो 2500 हुआ, तो आपका 1 लाख का क्या हुआ, ये दिस इज ओनली 2.5%। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, वंस यू बिकम द प्रो और आपको लगता है तो यू कैन ट्रेड इन मैक्स 5 स्टॉक। जो बड़ा पैसा बनता है ना, वो हमेशा बड़े एलोकेशन से बनता है। आई रिपीट, बड़ा पैसा मार्केट में बनाना है तो आपको अपना एलोकेशन बड़ा रखना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीज़न जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं दे विल नॉट ट्रेड मोर देन 5 स्टॉक। 1 करोड़ है तो दे विल पुट 20 lakhs इन 1 स्टॉक, सो दैट इफ द गेन, मतलब जो गेन अगर परसेंटेज अगर आप सही हो तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है। एंड इसलिए आपने देखा होगा समटाइम, जो मैंने बोला कहीं पर, मेरे पोजीशन से एलोकेशन बहुत हाई होता है एक एक स्टॉक के अंदर। फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे मैंने IFCA के अंदर आई पुट 10-15 लाख रुपीज़, जो आपने स्क्रीनशॉट भी देखा होगा। तो क्यों किया वो मैंने, और मैंने वेबिनार में भी शेयर किया था, बिकॉज फॉर दैट पोर्टफोलियो नाउ आई एम सिटिंग ऑन द 35-40% ऑफ प्रॉफिट। अभी साल में उस पोर्टफोलियो में एक भी ट्रेड नहीं लूँ, आई एम ओके विद इट। ठीक है, तो समटाइम इट हैपन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आर सिस्टम भी आपके साथ शेयर किया था कि वो स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर पड़ा हुआ ही होगा। ठीक है, ये आपका आर सिस्टम मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, एंड एट दैट टाइम 80 या 85% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन सिंगल स्टॉक, बिकॉज आई हैव ए गुड कन्विक्शन ऑन दिस ट्रेड। तो फॉर दैट रीजन विद इन ए 15 days माई रिटर्न वॉज अराउंड 45% CAGR। तो आई वॉज ओके विद इट, और फिर उसके बाद में स्लो कर दिया था पूरे साल भर का अपना काम। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द एलोकेशन। बट बिगनर लेवल पे अभी आप ऐसा हो तो आपको एलोकेशन का वही रूल फॉलो करना है, 10% वाला, और उसी के हिसाब से चलना है बड़ा पोजीशन बनाने के लिए। अब नाउ हाउ कैन यू बिगर, हाउ जैसे मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मेरा पोजीशन बड़ा या छोटा मुझे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक यू द एग्जाम्पल ऑफ IFCA। ठीक है, वेन एवर आई फाइंड, रीज़न क्या था उस बड़ी ट्रेड के पीछे, वेन एवर आई फाइंड ए बिग बेस, बिगर द बेस, आई रिपीट, बिगर द बेस बिगर माई पोजिशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, बिगर द बेस गुड द VCP, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बहुत पतला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होता तो मैं नहीं लेता। कॉन्ट्रैक्शन बहुत पतला होना चाहिए, सो दैट यू विल ईजिली फाइंड आउट इन केस इफ द ट्रेड इज गोइंग रॉन्ग, इफ द मार्केट इज गोइंग रॉन्ग, तो वेयर टू टेक द स्टॉप लॉस। फॉर दैट पर्पज bigger base with good volatility can help you to increase your size। अभी साइज का कोई मेरे लिए फॉर्मूला नहीं है, मुझे आप इतना लंबा बेस दे दो और यहाँ ब्रेकआउट करके रिटेस्ट दे दो, मैं पूरा कैपिटल उसके अंदर डाल सकता हूँ। अगर रिजल्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो मैं इस, और थोड़ी कंपनी अच्छे साइज के, तो मैं आई कैन पुट बिगर मनी और कैन 80-90% ऑफ माई मनी इन सिंगल स्टॉक ऑल्सो। बट ठीक है, अगर इतना बड़ा पैसा आप डालोगे तो इट शुड बी इन योर रेडार, राइट। एट दिस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा पॉइंट था ना IFCA के अंदर, एट दैट टाइम आई पुट आई थिंक 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो वॉज इन दिस ट्रेड ओनली।
मेरा वाइफ का, मेरा फादर का, सबका पैसा हमने इसके अंदर ही डाल रखा था इस पॉइंट के ऊपर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर गया तो अब क्या होगा, पैनिक भी होता है, ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट वैनिश ना हो जाए। तो वी स्टार्ट यहाँ पे अराउंड, इसके अराउंड 30 पे खरीदा था, 47-50 से हमने बुकिंग स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो again in nutshell I am talking you the allocation you have right now. If you are not a pro, you have to follow the rule of 10% in each stock. Don't go beyond the 10 stock. अगर 10 stock से ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, सपोज यू आर होल्डिंग मोर देन 10 स्टॉक, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप सबसे पहले काम करो, आपके स्टॉक्स के चार्ट देखो। चार्ट देखना तो आई थिंक अब आपको आ ही गया है। तो जहाँ पे आपको दिखता है कि एलोकेशन आपके मतलब या तो बहुत कम कम है, मतलब सपोज आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है एंड यू आर होल्डिंग फ्यू स्टॉक्स वर्थ 5,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, तो बेटर दैट पोजीशन इज इन लॉस और प्रॉफिट, नो मैटर। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको नंबर ऑफ पोजीशंस अपने पोर्टफोलियो में कम करनी है। देखो एक बात समझो, अगर सपोज कोई स्टॉक आपके पास है, मान लो 1 लाख का, वो अभी उसकी वैल्यू चल रही है 90,000, तो व्हाट, अगर हमारा दिमाग क्या बोलता है, आवर माइंड विल से आई विल वेट इन दिस ट्रेड नो मैटर वेदर 1 ईयर और 2 ईयर, बट आई विल नॉट सेल इन द लॉस, एंड फॉर दैट रीज़न क्या होगा, वो 90,000 80,000 हो जाएगा। अभी ये साइकोलॉजी आपको चेंज करना पड़ेगा। समझो आप कि जो 1 लाख था ना, वो 90,000 तो हो चुका है। आई रिपीट, 1 लाख जो है वो 90,000 हो चुका है, मतलब राइट नाउ दैट कैपिटल इज ओनली 90,000, दैट कैपिटल इज नॉट 1 लाख। अभी 90,000 चाहे आप उस स्टॉक में रखो, चाहे उसको बेच के 90,000 लेके किसी अच्छे स्टॉक में डालो, ठीक है, सेम थिंग है। तो अब आप क्या चीज़ चुनोगे, अब 90,000 तो हो ही गया है, तो अब एक बीमार घोड़े के ऊपर 90,000 रख के उससे 10,000 रिकवर करना पसंद करोगे, या 90,000 को एक हेल्दी हॉर्स को खरीद के उससे अपने पैसे को रिकवर करना पसंद करोगे? 99% पब्लिक बिकॉज ऑफ इमोशंस क्या करती है, दे वो जो लंगड़ा घोड़ा है उसी के ऊपर बैठी रहेगी जब तक वो पैसा आपको कमा के देगा नहीं, और मे बी वो नहीं भी दे कभी आने वाले टाइम में। तो बेटर ये है कि योर कैपिटल जो होनी थी 1 लाख की 80,000, वो 80,000 हो चुकी है। अब उस 80,000 को वहाँ से उठाओ और बड़े अच्छे घोड़े के ऊपर बैट करो। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज करना है। टू प्रैक्टिस दिस साइकोलॉजी आपको करना क्या है, कल परसों के अंदर आपके स्टॉक में अंदर जो सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है उसको आंख बंद करो और बेच दो। अगर चार्ट पे आपको दिख रहा है कि सही में डाउन ट्रेंड ही ये चल रहा है उसका, और डाउन ट्रेंड में वो अप ट्रेंड बना रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू विल फाइंड मी नॉट टू ट्रेड सच टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो अगर आपका स्टॉक ऐसे में अप ट्रेंड दिखा भी रहा है तो बेटर यू हैव टू एग्जिट दैट स्टॉक। तो एक बार प्रैक्टिस करो, जो भी आपके ऐसे लूजर स्टॉक है निकालो, उससे 2 बेनिफिट होंगे आपके, धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो में हेल्दी स्टॉक्स भी एक्यूमुलेट होते रहेंगे एंड सच टाइप ऑफ बुलशिट स्टॉक भी निकल जाएंगे, पोजिशंस भी कम हो जाएगी। बिकॉज इफ़ योर पोर्टफोलियो है मोर देन 10 और 12 पोजिशंस, तो व्हाट विल हैपन, यू कैंट फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक। तो कुछ आपको पैसा देंगे, कुछ लेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी नील बटा सन्नाटा। ओके, तो फॉर दैट रीजन यू हैव टू रिड्यूस योर पोजिशंस। कई बार आप क्या कर सकते हो, कई बार मैं क्या करता हूँ, कुछ पोर्टफोलियो के अंदर मैं वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी का, जहाँ मुझे शॉर्ट होता है ना कि यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है 10, 20, 30, 40%, तो आई जस्ट पुट माई कैपिटल, बिगर कैपिटल एट दैट पॉइंट, 20-30% लिए और चलेगा वापस कैश पे बैठ गया। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोच है, तो आपको वो अप्रोच फॉलो करनी है जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बट एलोकेशन में आपको ये चीज़ का बराबर ध्यान रखना है। अगर पैटर्न बहुत सिंपल है और बहुत बड़ा लेफ्ट साइड में बेस है, गो विद बिगर पोजिशन, एल्स 10% इज ओके फॉर यू। अगर किसी, ये बात क्लियरली समझ लेना, अगर किसी और के कॉल पे, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, अगर किसी और के कॉल पे अगर आप बैट कर रहे हो ना, तो योर पोजिशन शुड नॉट बी मोर देन 5 और 6% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। और हम करते इसका उल्टा ही है, हमें खुद पे कन्विक्शन नहीं होता, इफ समबडी एल्स इज सेलिंग इज कन्विक्शन ना, तो वी विल बैट हैवी ऑन दैट स्टॉक, एंड फॉर दैट रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वारी की बात करते हैं। ठीक है, ये वारी स्टॉक है, यहाँ पे सिंपली सा आपको सब कुछ दिख जाएगा, दिस इज़ द स्टेज 2, दिस इज़ योर स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर योर RSI वॉज गोइंग डाउन, राइट, और एग्जैक्टली बॉक्स को टच करके टॉप किया, और यहाँ पे सब बोल रहे थे अगेन एक नया वेव आएगा, फलाना जो भी आएगा, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लोगों ने पोजीशन बना ली, ये देखे कि भाई ये तो सर्किट में ही चलता है। ठीक है, एंड व्हाट हैपन विद दैट पीपल, 3,000 से लेकर ये 50% कैपिटल जा चुका है। अब ये 50% को रिकवर करने के लिए दिस स्टॉक हैज़ टू मूव 100%।
ठीक है। अभी ठीक है, वो फंडामेंटल में आएगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द एलोकेशन। अगर इतना अप ट्रेंड के अंदर कोई स्टॉक है उसके अंदर आप एलोकेशन बना रहे हो तो इट्स बेटर डोंट डू दिस एंड नेवर बाय द स्टोरी। फॉर एग्जांपल एक ट्रिल करके स्टॉक था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का स्टोरी चल रहा था ना। मोस्ट ऑफ यू नो दैट फ्यू 2 to 3 month बैक ट्रांसफॉर्मर का थीम चल रहा था। इवन आई ऑल्सो सजेस्टेड द BHEL एंड ऑल दिस थिंग्स। क्या हुआ अभी? नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। एवरीबडी वॉज सेइंग दैट डेटा बेस की थीम चलेगी तो ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो ट्रांसफॉर्मर का एक बहुत बड़ा मेगा थीम है। नाउ नो बडी इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर। क्यों? Because when the stocks is going to the consolidation, all the themes, all the thread, all the theories will go into the consolidation. So instead of focusing on what's the stories going on in the market, better you should focus on what the chart is saying to you. Now nobody will talk about trill. ठीक है, क्यों कोई बात नहीं कर रहा? बिकॉज अभी नाउ स्टॉक इज स्लीपिंग मोड। ठीक है, हो सकता है यहाँ के बाद स्टेज 4 भी आ जाए। अभी आपको क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो दिस इज हाउ you have to make your allocations. Now coming to the again let me discuss this पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग आपका किस पे डिपेंड करेगा? प्रोफेशनल्स प्राइस एक्शन ट्रेडर लव एंटरिंग लो वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट, जो VCP पैटर्न मैंने आपको बोला। योर क्यों वाई द VCP पैटर्न? बिकॉज आपको स्टॉप लॉस आपका बहुत नज़दीक रहेगा, अलाउ यू टू पुट ऑन लार्जर पोजीशन साइज एंड इफ द वॉलेटिलिटी एक्सपेंड इन योर फेवर इट ऑफर ए फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। जो मैंने आपको बोला उसका इंग्लिश वर्जन है कि if the volatility is low and a long base is there, you can make a very much big position with a quite a very tight stop loss in your mind. ठीक है, एग्जिट रूल जो मैंने आपको बोला, if the overall market condition is not good। अब आपको दिख रहा है कि you are doing a forced trade। अगर आप forced trade ले रहे हो, मार्केट अच्छा नहीं है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्मॉल कैप एंड द निफ्टी, तो उस केस में आपको अपना एग्जिट रूल पर फोकस करना है, आपको अपनी पोजिशंस कम कर देनी है। सेकेंड जो मैंने आपको बोला, ब्रेकआउट कैंडल का जब भी लो ब्रेक होता है यू हैव टू कट आउट ऑफ द पोजीशन। इन फर्स्ट मॉड्यूल में हमने बात की थी रिवर्स पिच को। अगर अप ट्रेंड के अंदर इफ यू फाइंड द रिवर्स कैंडल विद गुड वॉल्यूम, दैट मीन्स दैट बिग प्लेयर इज सेलिंग दैट स्टॉक, एट दिस पॉइंट यू हैव टू कट योर एग्जिट योर स्टॉक। अगर सिंगल किसी स्टॉक के अंदर आपको 8 से 9% अगर जा रहा है तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। ठीक है, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 5 से 6% के नीचे जा रहा है तो यू हैव टू टेक ए लॉस एंड एग्जिट। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, तो मेरे दिमाग में फिगर बैठा हुआ है 94 लाख। अगर 94 लाख के नीचे अगर मैं जाता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं सारे सेल बटन दबा दूंगा। ठीक है, वाई? रीज़न बताता हूँ वाई। बिकॉज इन केस अगर मार्केट के अंदर कोई भी क्रैश आता है, या नो बडी नोज कि आएगा नहीं आएगा, आता है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई इसके नीचे मैं नहीं झेलूंगा। ऐसा ना हो कि 1 करोड़ की कैपिटल 50 लाख हो जाए। ठीक है, तो एक फिगर आप अपने दिमाग में बिठा लो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए 1 करोड़ है तो मैंने बिठा रखा है कि 94 लैक्स। सपोज कि 94 मतलब 6% ऑफ द पोर्टफोलियो के नीचे मैं नहीं जाने दूंगा। अगर 6% के नीचे जा रहा है तो देर इज़ ए चांस, आई रिपीट, देर इज़ ए चांस कि वो 6% नीचे जाके वापस आ जाए। वो 94 लाख हो गए वापस 1 करोड़ हो जाए। बट वंस इन ए वाइल ऐसा भी होगा कि वो 94 लाख से 70 लाख भी पहुँच जाएगा। क्योंकि जब वो डाउन ट्रेंड होगा ना, एग्जैक्टली, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोगों की 2 अप्रोच होती है। डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी वो रिवर्स करने की कोशिश करता है तो लोगों को लगता है नाउ दिस इज अ सपोर्ट, तो वो सपोर्ट को बाय कर लेते हैं। कहते हैं ना वो कि कई लोग बोलते हैं गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं, तो वो लो को बाय करने की सोचते हैं, फिर अगेन नया लो बना देता है। राइट, तो फॉर दैट रीजन ऑलवेज कीप 6% और 7% वॉट एवर इट इज ए स्टॉप लॉस इन योर माइंड कि इस पर आपको निकलना। अंतरात्मा की आवाज़ ये होता है, कई बार आपको दिख रहा है कि स्टॉक हैज़ ऑलरेडी गिवन ए गुड मूव विद इन 2 to 3 डेज, तो बेटर है उसको आप एग्जिट कर लो। प्रॉफिट बुकिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग में क्या है, आपको जहाँ मन करे ना वहाँ निकल लो। जहाँ पे आपको डर लगने लग जाए ना एक के बाद कि यार ये प्रॉफिट चला ना जाए, तो डरने से अच्छा है उस प्रॉफिट को लॉक कर लो। तो लॉक करने में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल की बात हम ले लेते हैं, ये बालू फोर्ज है। ठीक है, ये कल मैंने इसके अंदर बुक कर लिया, आज ये मेरे बुक करने के बाद भी 7-8% चला, तो इट्स ओके, मुझे हार्डली केयर अबाउट दिस स्टॉक। मैंने मेरा बुक कर लिया, मुझे मिल गया, उसके बाद जा रहा तो जाने दो। अभी कोई रूल थोड़ी ना लगाया यहाँ पे मैंने कोई फिबोनाची और कुछ नहीं लगाया था। सिंपली मेरे को 3 दिन के अंदर ये आप लगाओगे ना, देखो एग्जैक्टली वो चीज़ उससे मैच कर देगा। ये टच करोगे
तो आपका एग्जैक्टली वो यहीं पे वो मैच हुआ आज। तो कल जब वो सेकंड जोन में आया था तो मैंने इसको यहाँ पे टॉप पे बुक कर लिया था 485 के ऊपर। आज वो 512 तक गया, ठीक है, मुझे नहीं पता था यहाँ तक जाएगा, रिजल्ट था इसकी वजह से मैंने कहा हो सकता है गिर भी जाए, तो वाई नॉट लॉक द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो आपको हमेशा कहीं भी बुक कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज ये कि अंतर जब भी आपको डर लगने लगे तो बेटर है आपको उसको कट कर देना है। एग्जिट पॉइंट तो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, अभी आप यहाँ पे आपको कोई डाउट आएगा नहीं। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इन फंडामेंटल एनालिसिस यू कांट रीड ऑल द कॉन कॉल्स या रिपोर्ट्स, सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन दिस 6 पॉइंट। सेल्स शुड बी राइजिंग, आपको ये देखना है कि जो सेल्स है कंपनी का वो बढ़ना चाहिए। ओपीएम राइजिंग, ओपीएम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन राइजिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताता हूँ क्या होता है। फिर उसके आगे अर्निंग पर शेयर जो है वो राइज होनी चाहिए, ठीक है, राइजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। बिग प्लेयर इन द स्टॉक, मतलब कोई बड़ा प्लेयर या एस इन्वेस्टर्स जो होते हैं या म्यूचुअल फंड या एफआईएस, उनकी होल्डिंग राइजिंग ट्रेंड में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वो मार्केट लीडर है तो बेस्ट है। और पी जो होता है लास्ट में वो आपको नहीं देखना है, बिकॉज दैट इज़ ए बुलशिट टर्मिनोलॉजी दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। तो ओपीएम क्या होता है? ओपीएम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सपोज आप मानो कि अगर आप मोमोज का आप सेल कर रहे हो, ठीक है, आपके मोमोज की सेलिंग बहुत अच्छी है, आपकी सेल्स बढ़ भी रही है, ठीक है, सेल्स आर राइजिंग, क्या लोगों को आपको पसंद आ रहा है। तो क्या हुआ, मार्केट में जब आपका मोमोज इतने बिक रहे थे तो बाजू में किसी और ने भी अपना मोमोज का शॉप डाल लिया कि उसने सोचा कि इस एरिया के अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो लेट्स ओपन वन मोर स्टोर। तो किसी और आपके कॉम्पिटिटर ने आपके वहाँ पे मोमोज खोल लिया। तो अर्लियर यू चार्ज 50 रुपीज़ पर पैक, नाउ वॉट इज़ हैपनिंग, यू आर ओनली एबल टू चार्ज 40 रुपीज़। द रीज़न क्या है, क्योंकि आप 50 ले रहे हो तो वो बंदा 45 ले रहा है। तो कस्टमर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मोस्टली कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अपना सेलिंग प्राइस जो है वो कम कर दोगे। अब आपने सेलिंग प्राइस कम किया और आपको जो वो पैक बनाने के अंदर पहले 20 रुपीज़ लगते थे एंड यू आर सेलिंग एट 50 रुपीज़। नाउ स्टिल यू आर बनाने में आपको 20 रुपीज़ लग रहे हैं, बट नाउ यू आर सेलिंग एट 45 या 40 रुपीज़। तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिन कम हो गया। एंड ये मार्जिन कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, राइट। तो अगर किसी कंपनी का ओपीएम कम हो रहा है तो दो वजह हो सकती है, देर आर टू रीज़न। फर्स्ट रीज़न इज दैट द कॉम्पिटिटर्स आर कमिंग इन टू द मार्केट, मतलब इन शॉर्ट मैं टर्मिनोलॉजी की टर्म में बात करता हूँ कि दो जो ये कि जो पहले जो कंपनी अपना मोनोपोली इंजॉय कर रहा था वो इंजॉय नहीं कर पा रहा बिकॉज सम अदर प्लेयर्स आर इन द मार्केट, राइट। या फिर दूसरा, जो रॉ मटेरियल जो लगता है मोमोज बनाने के लिए उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो पहले 20 रुपीज़ में बनता था, नाउ सपोज अगर ओनियन का कॉस्ट बढ़ गया तो नाउ इट इज टेकिंग मी 30 या 35 रुपीज़। तो इन दैट केस ऑल्सो माई मार्जिन विल बी हैविली बिट। तो जो स्टॉक्स आप देखोगे ना स्टेज 4 में आते हैं, उनके साथ मोस्टली दोनों चीज़ें होती है। उनके कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ जाते हैं तो उनका ओपीएम इसकी वजह से भी कम हो जाता है और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ये दोनों फैक्टर अगर किसी पे लग जाते हैं ना तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली स्टेज 4 के अंदर आपको उसका चार्ट दिख जाएगा। क्लियर? अर्निंग पर शेयर आप समझ ही गए होंगे कि ईपीएस आपका राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू इट सम एग्जांपल्स, लेट्स सी। बिकॉज एक चीज़ आप सिंपली ये देख लेना कि अगर फंडामेंटल बैक्ड होगा तो स्टॉक आराम से उस चार्ट को ऊपर लेके जाता जाएगा। अगर फंडामेंटल बैक्ड नहीं है और सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहा है तो समडे इट विल श्योरली फॉल, बिकॉज द ट्रूथ इज द फंडामेंटल्स एंड द चार्ट्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। कभी थोड़ा सा आगे चार्ट आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, बट एट द एंड दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर यू, तो फॉर दैट थिंग यू विल कम इन टू दिस पार्ट और सपोज लेट मी शेयर यू न्यूलैंड को ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यूलैंड। नाउ कमिंग टू द प्रॉफिट थिंग, ठीक है। यू विल फाइंड दैट दिस कंपनीज प्रॉफिट इज अराउंड और 12 एंड सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स इज 600, 700, 900, 1100, 1500, बस सेल्स इज इन राइजिंग ट्रेंड, ओके। नाउ कमिंग टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम, तो ओपीएम इज 9, 13, 16, 15, 23, 30, दैट इज ऑल्सो इन राइजिंग ट्रेंड, गुड। तो दोनों का आईडी अपना मैच हो गया। आपका अर्निंग पर शेयर देखो 12, 60, 49, 127 और 233, इट इज़ मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग। अब देखो ना 12 रुपये से मल्टीप्लाई कर 20x हो चुका है, 20 मतलब 20 से, और 21 से देखोगे तो भी ये
4x हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग, ओके। नाउ ये चार चीज़ें आपने देख ली। अभी नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टर पार्ट। इन्वेस्टर में आप देखो क्या हो रहा है। तो एफ का जो वेटेज था वो 17 से 20, 24, 25, ठीक है। डी का सेम है। पब्लिक होल्डिंग में जाके देखो, इज देयर एनी बिग नेम, तो यू फाइंड ए गुड बिग नेम इज देयर। तो मुकुल महावीर अग्रवाल इज देयर, सिद्धार्थ अय्यर, तो ठीक है। केडिया सिक्योरिटी मतलब विजय केडिया इज ऑल्सो सिटिंग इन दिस स्टॉक, ठीक है। नाउ अगेन कमिंग टू दिस पार्ट। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ चार्ट पे दिख रही थी या नहीं दिख रही थी। ठीक है, 2021, ठीक है। दिस इज योर 2021। द स्टॉक इज बिकम 2000 रुपीज से 9000, ठीक है। दैट इज अराउंड मोर देन 4x। तो यही चीज़ आपको वहाँ देखने को मिली थी कि अर्निंग्स ईपीएस जो था दैट इज बिकम 4x, तो स्टॉक विल बिकम 4x। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ द अर्निंग बिकम 4x, तो मोस्ट केसेस स्टॉक विल बिकम 5x और 10x, या मोर देन 2 times ऑफ द अर्निंग इंक्रीज। तो दिस इज वॉट हैपन एक्चुअली। अभी आप अगर क्वार्टरली पे जाओगे, क्वार्टरली टू क्वार्टरली कंपेयर करोगे, तो लास्ट यहाँ देखोगे मार्च से कंपेयर करोगे तो सेल इज नॉट इंक्रीजिंग इन लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, राइट। एंड जो ओपीएम था वो भी 33-31 डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, ठीक है। अर्निंग भी आप देखोगे तो 6970 से 6352 हुआ क्वार्टरली। तो अगर वीकली पे देखोगे ये चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये वो पार्ट है, वो रिजल्ट खराब आ रहे थे आपके, तो ये आपको ये देखो यहाँ पे। बट ओवरऑल आप चीज़ें देखोगे तो वो अच्छी कंडीशन में थी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इफ़ द स्टॉक इज बैक्ड विद द राइजिंग these parameter what I mentioned here, the stock will follow the chart will be followed by stock price, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीसीबीएल का आप देखो अर्निंग आ गया है, ठीक है। तो पीसीबीएल का जो अर्निंग था यहाँ पे ये राइजिंग ट्रेंड में है, ठीक है ना। अर्निंग था ये, इसका 15-16 मार्जिन भी ओके है, और ये भी 9 से 11 से 13 ही है। मतलब कुछ बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट ठीक है, वो बेटर उस जोन में ही है। अगर आप देखेंगे एफ कम कर रहे थे, बट डी ने अगेन पहले कम कर रहे थे, नाउ अगेन दे हैव इंक्रीज्ड। एंड पब्लिक में आप जाके देखोगे तो यू विल फाइंड ए नेम आशीष कचोलिया, बट ही इज रिड्यूसिंग द होल्डिंग इन दिस कंपनी, राइट। देखो पैटर्न, पहले बढ़ाया फिर कम किया। तो नाउ कमिंग बैक टू द क्वार्टरली, तो what you will find at this point, the earning is not rising with that speed, उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दिस स्टॉक हैज़ टेकन टू मच टाइम। आप यहाँ देखोगे ना, तो पूरा 1 साल आई थिंक, अगर मतलब 2024 से पूरे 8-9 महीने ले लिए टू कम टू द दैट पॉइंट अगेन, राइट। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। तो ओवरऑल ट्रेंड जो होगा वो आपका मंथली रिजल्ट्स पे रहेगा। और अगर आपके छोटे छोटे बीच में जो डेली या जो वीकली में आपको जो ये डाउन ट्रेंड दिखेंगे, ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। कई बार होता है कंपनी, ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर टू ईयर बैक टू बैक अच्छे रिजल्ट देगी, कई बार ऊपर नीचे होता है। तो वो चीज़ आपको रिजल्ट, वो चीज़ आपको मतलब चार्ट्स पे क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स और कुछ ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द शक्ति पंप, ठीक है। तो कमिंग टू द प्रॉफिट, दिस इज 900, 1100, राइजिंग टेन 1300, 1800। अगर 21-22 से देखूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। अर्निंग इज 35 से आपका 3x अर्निंग हो चुका है, ठीक है ना, मोर देन 3x। तो ओके, नाउ कमिंग टू द योर ओपीएम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग 9%, 7%, 16 एंड 19। इसका मतलब अभी कंपनी के पास मोनोपॉली आ रहा है, या फिर दो चीज़ हो सकता है, या तो मोनोपॉली है या फिर रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो चुका है, फॉर दैट रीजन द ओपीएम इज राइजिंग। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टर्स, तो एफ आईज आर इंक्रीजिंग, जो 0-0 हुआ करते थे नाउ इट्स डायरेक्टली 2.32। और यहाँ पे आपका डी आई एस भी सडनली 0-0 थे, दैट इज 8 एंड नाउ दैट इज 6.85। एंड बिग प्लेयर आई थिंक बिग प्लेयर इज नॉट इन द स्टॉक, बट ओके। नाउ कमिंग टू द शक्ति पंप चार्ट, अभी देखते हैं कि अर्निंग इतना गुना हुआ है 2x, तो यहाँ पे चार्ट भी हुआ है क्या।
ठीक है, तो जैसे जैसे अर्निंग ऊपर गया वैसे आपका ट्रेंड हुआ। अभी आपका अर्निंग यहाँ पे देखोगे इट विल बिकम द मोर देन 3x, राइट, फ्रॉम 2022 से आपका अर्निंग 3x हुआ है। तो आप यहाँ पे लगा लो, ये आपका अर्निंग 22-23 अराउंड, राइट। तो यहाँ से 500 रुपीज़ से योर स्टॉक इज़ 4000, दैट इज़ 8x। तो आपका अर्निंग 3x हुआ है और स्टॉक आपका 8x मूव कर चुका है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क इन द मार्केट। क्योंकि अब क्या है, अगर सपोज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द अर्निंग, तो इफ द स्टॉक विल गो टू दिस प्राइस ना, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि यार ये तो ऑलरेडी चल चुका है, अभी क्या चलेगा। सपोज दिस स्टॉक फ्रॉम 500 टू 1000 रुपीज़। तो नॉर्मली आप क्या सोचते हो, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी बहुत चल चुका है। बट इफ़, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ द स्टॉक इज बैक्ड विद गुड अर्निंग, अगर स्टॉक अच्छी अर्निंग के साथ ऊपर जा रहा है तो देन आपको उसको और ऊपर ही लेने की प्राइस पे ही बाय करना है। बिकॉज उधर क्या होगा, नॉर्मल रिटेलर नहीं होगा, सिर्फ आप और बड़े प्लेयर्स होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक अच्छी अर्निंग से बैक्ड है और फिर ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उसको ऊपर लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे रिटेलर्स नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आप बड़े प्रोफेशनल के साथ उस स्टॉक को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक दिस थिंग। नाउ कमिंग टू द वारी, वाई वारी इज नॉट मूविंग, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, वारी पी इज 121, स्टिल द स्टॉक इज 14, मतलब 50% गिर चुका है, 3000 से 1700 जितना आ गया है। तो भी इसका पी 121 है, मतलब जब ये वहाँ पे, मतलब इसका मार्केट कैप मतलब 50% है ना, 100% बढ़ा दो, 34,000 करोड़ था, दैट पी शुड बी अराउंड 240 करोड़, 240 का पी। ठीक है, था भी। ठीक है, अभी क्या हो, समस्या क्या हुई, तो समस्या ये हुई है कि इफ़ द मार्केट इज गिविंग द स्टॉक 240 पी, पी मतलब क्या होता है आपका, प्राइस अपॉन अर्निंग। 240 का पी अगर किसी का है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस कंपनी की अर्निंग इतनी तेज बढ़ेगी एक्सपोनेंशियल वे में कि वो ये रेशो जो है ना, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि मार्केट इज प्रेडिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी या दिस सेक्टर इज दैट मच स्ट्रॉन्ग कि इफ द अर्निंग विल गो लाइक दिस और अर्निंग विल बिकम मोर 2x। फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्निंग लास्ट क्वार्टर से 2x होती तो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 120, अर्निंग 4x होती तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 60। तो दिस इज वॉट मार्केट इज प्रिडिक्टिंग कि इसकी अर्निंग 10-15% नहीं बढ़ेगी, इसकी अर्निंग सीधा 2x 3x इस वे में बढ़ेगी। एंड वॉट हैपन एक्चुअली हेयर, योर सेल्स रिड्यूस्ड इन मार्च, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज 4x, राइट। 23 से आप देखोगे 24 4x है, बट लास्ट क्वार्टर के अंदर मार्केट जहाँ प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई तुम दिन रात दुगने चौगने हो जाओ, तो एक भी क्वार्टर अगर खराब आएगा तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपको चार्ट पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली आपका सेल्स कम हुआ मार्च 24 के अंदर, योर प्रॉफिट सडनली ड्रॉप फ्रॉम दिस 87 से 72, 64 से 54। मतलब आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्लास में फर्स्ट आए और वो 10th आ रहा है, 8th आ रहा है, तो आप नहीं उसको जमा पाओगे ना। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। कंपेयर टू दिस मार्च, दिस इज ओके, दिस इज 5x, राइट। बट स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना यहाँ 23, इसके अकॉर्डिंग 200 रुपये से वो 2500, मोर देन 25x हो चुका है। ठीक है, अर्निंग 5x हुई है और स्टॉक 25x हो चुका है। तो स्टॉक इज नॉट रेडी टू हैव सच टाइप ऑफ रिजल्ट फॉर इवन वन क्वार्टर। इस वजह से ये सब आपने जो डिप देखने को मिल रहा है, ये जो फैक्टर मिल रहा है, ये चीज़ इस वजह से हो रही है। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी द रिजल्ट्स। सिंपली ये 5 चीज़ें आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ पीई, वाई पी इज बुलशिट, वाई यू शुड नॉट सी द पी इज सिंपल। ऐसा नहीं है, कभी कभार देख भी लिया करो, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब लर्निंग के हिसाब से ओके है, बट मेरे लिए पी क्यों नहीं अच्छा है, बिकॉज इफ सम कंपनी पी इज 200, राइट, एंड दैट कंपनी अर्निंग इज बिकमिंग 4x एवरी क्वार्टर, मतलब 4x कर रही है, तो विद इन नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर दिस पी विल बिकम 50, राइट। तो पी इज नॉट ए
थिंग इफ द कैटलिस्ट इज देयर, अगर मतलब कंपनी के पास कोई कैटलिस्ट है जो सिर्फ उसी के पास है, तो यहाँ पे पी कोई मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज वो अर्निंग इतना बढ़ जाएगा कि उसको फैक्टर इन कर देगा। क्लियर है? तो 200 का पी है, आप उसको नहीं लोगे, बट हो सकता है यू आर मिसिंग दैट कैटलिस्ट इन द कंपनी, और वो उसकी वजह से अपना अर्निंग इन फ्यूचर वो ठीक कर लेगी या फिर एक्सपोनेंट कर लेगी, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, पी पे होता है। अब मान लो किसी का पी सिर्फ 10 है, तो आप क्या सोचोगे ये सस्ता है, अरे बट ये सस्ता कैसे, लोगों को भी तो दिख रहा है इसका पी सस्ता है, फिर भी लोग क्यों नहीं ले रहे? अगर लोग इसको लेते तो प्राइस बढ़ जाता, और अगर प्राइस बढ़ता तो ये पी न्यूमिनेटर ऊपर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लग जाएगा। बट स्टिल प्राइस इज नॉट गोइंग अप बिकॉज द मार्केट इज प्रेडिक्टिंग दैट द अपकमिंग अर्निंग विल बी गोइंग मोर वर्स्ट। मतलब इस कंपनी के पास जो और समस्या और बढ़ने वाली है, तो वो और अर्निंग कम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि दिस इज अंडर वैल्यूड। दुनिया जानती है अंडर वैल्यूड, बट दिस इज नॉट अंडर वैल्यूड, दिस इज वॉट द स्टॉक इज डिजर्विंग। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम कभी भी 10 पी 5 पी का कोई स्टॉक आपसे शेयर करे ना, तो ये मत सोचना कि आप लोगों को दिख नहीं रहा, आप यू आर द लकी वन एंड यू आर द फर्स्ट वन टू फाइंड आउट दैट स्टॉक। दैट स्टॉक डिजर्व द पी ऑफ 5 ओनली, फॉर दैट रीजन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दैट वैल्यूएशंस। ओके? तो इन नॉर्मल केसेस आई यूजली ट्राई टू बाय द स्टॉक, वैसे तो मैं पी देखता नहीं हूँ, बट यूजली आई ट्राई टू बाय द स्टॉक वेयर द पी इज अराउंड मतलब 40-50 के 40-30, मतलब मोर देन 20 तो होना चाहिए। ठीक है? बिकॉज उस कंपनी का कुछ कैटलिस्ट होगा, फॉर दैट रीजन मार्केट इज गिविंग द पी ऑफ 20, राइट? ठीक है? अब नाउ कमिंग टू द कॉमोडिटी पार्ट, ये लर्निंग मेरे को बहुत मार खा खा के सीखने को मिली है, इसलिए इसको बहुत ढंग से सीखना। इन कॉमोडिटी द पी वर्क जस्ट इनवर्सली वॉट इट वर्क इन द नॉर्मल मार्केट। मतलब नॉर्मल मार्केट में अगर पी 5 है तो आपको लगेगा कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, उठा लो। बट अगर कॉमोडिटीज फॉर एग्जांपल मेटल्स, सेल, हिंद कॉपर, इसके अंदर अगर आपका पी 3 हो रहा है, 3 हो रहा है या 2 हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना कि पी मतलब क्या होता है, द अर्निंग जिस तरीके से आ रही है उस तरीके से प्राइस को 3 साल के अंदर ये आपको रिकवर करके पैसा वापस लौटा देगा। तब आप क्या सोचोगे, अरे यार मैं जो स्टॉक को जो प्राइस दे रहा हूँ वो तो 3 साल में इसकी अर्निंग के हिसाब से मेरे पास आ जाएगा, तो वाई शुड आई नॉट बाय दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ठीक है? इन कॉमोडिटीज नॉर्मली क्या होता है, अगर दे आर ट्रेडिंग एट लो पी, दैट इज द टाइम यू हैव टू सेल द स्टॉक, एंड व्हेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 43 पी, मतलब हायर पी 50 पी, दैट इज द टाइम टू बाय द स्टॉक। ठीक है? बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है, आई एम अगेन रिपीटिंग। अगर कॉमोडिटी के अंदर पी ज़्यादा है, 50-60 है, तो आपको उसको बाय करना है, और अगर पी लो है, 2 है, 3 है, 5 है, तो आपको उसको नहीं बाय करना है, पोर्टफोलियो में है तो आपको सेल करना है। रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है? ये मैं इस चीज़ के लिए ना पूरे सालों साल परेशान रहा कि मैं यही सोचता था यार, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेडिंग एट जस्ट 3 पी, द क्या मार्केट बेवकूफ़ है, लोग बेवकूफ़ है, दिख नहीं रहा कि उनको ये 3 पी का सबसे सस्ता स्टॉक है, वाई वाई दे आर नॉट बाइंग दिस। ठीक है? और इवन रिजल्ट आ रहा है अच्छा। ठीक है? 3 पी का होगा जब आपका अर्निंग्स बहुत अच्छा हो, तो डिनोमिनेटर अच्छा हो तो ऑटोमेटिक नंबर छोटा हो, तो रिजल्ट टीवी पे अच्छा आ रहा है और स्टॉक 3-3, 4-4 टका गिर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये चीज़ हो क्या रही है। तो जब इसको मैंने थोड़ा और डीप रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि जब भी कॉमोडिटीज़ में क्या होता है, जब व्हेन पी इज़ लो, तो पी इज़ लो दैट मीन्स देयर अर्निंग इज़ हाई। ठीक है? एंड कॉमोडिटीज़ में अर्निंग, सेल स्टील अथॉरिटी है, कॉपर का अर्निंग कब हाई होगा, जब आपका रॉ मटेरियल, मतलब जो भी आपका, मतलब आप कॉपर जो निकाल रहे हो उसका प्राइस मार्केट में हाई हो। मार्केट में कॉपर का प्राइस हाई होगा, इसका मतलब इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर कॉपर ज़्यादा डिमांड में है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है तो इन्फ्लेशन होगा। अगर कॉपर रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ने लग रहा है ना मार्केट के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है, वो चाहे बिल्डिंग हो, शिप्स हो, आपके व्हीकल्स हो, हर चीज़ के ऊपर वो चीज़ आएगी। तो फॉर दैट रीज़न द गवर्नमेंट हैज़ अ कमांड टू कंट्रोल इट। तो हाउ दे विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन, दे सिंपली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि जो बंदा पहले सोच रहा था कि यार मेरे को तो 4 टका पे % पे लोन मिल जाएगा, उसको अभी 9 या 10 टका पे लोन मिलेगा, तो उसकी समझो परचेजिंग पावर अपने आप कम हो गई। तो इस वजह से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो इन कंपनियों के साथ दिक्कत क्या होती है, हिंदुस्तान कॉपर या जो भी कंपनियां हैं जो कि जिनका
लॉन्ग मतलब लार्ज कैपिटल बेस्ड अटका हुआ होता है, मतलब इनकी फैक्ट्री या मशीनरी बहुत हैवी होती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया एक तो, ठीक है, और लोगों की बढ़ने की वजह से सेल कम हो जाएगी, तो दो इम्पैक्ट की वजह से इनको मार लगती है just because the interest rate hike. So this company mostly have the bigger size of loans, so for that reason the most of their money will enter into the to satisfy the interest part, so their earning will reduce, right? And second, the to control the inflation the price will automatically controlled, तो मतलब जो उनका जो रॉ मटेरियल वो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो दो तरफ से वो बिटन होते हैं जैसे ही इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एंड फॉर दैट रीजन देयर अर्निंग विल ड्रॉप सडनली। तो जैसे ही अर्निंग सडनली ड्रॉप हो जाएगी तो ये पी जो आप छोटा सा दिख रहे हो ना, ये तुरंत बड़ा होने लग जाएगा। तो इसलिए जब भी इनका रिजल्ट अच्छा आता है तो पब्लिक इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब बिगर प्लेयर इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, बिकॉज ये दे नो कि अगर इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है मतलब द कॉमोडिटी प्राइस आर गोइंग अप, एंड इफ द कॉमोडिटी प्राइस विल गो अप द गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन, एंड इन फ्यूचर दिस अर्निंग विल नॉट गोइंग टू सस्टेन, राइट? नाउ कमिंग टू द पी ऑफ 35, सपोज इनका पी 35 है, तो ये क्या बोलता है कि अर्निंग तो है नहीं फिर भी प्राइस खड़ा है। तो अब क्या होता है, अर्निंग नहीं है, रीज़न क्या है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुके हैं। तो मार्केट कैसे देखता है कि चलो भाई इनको लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब अच्छा है कि मतलब इनकी अर्निंग नहीं हो रही, बट अब एज गवर्नमेंट नो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो दे विल लूजन द इंटरेस्ट रेट या फिर दे विल कट द इंटरेस्ट रेट। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा तो जो इनको दोनों मार लगी थी वो दोनों इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड देयर इंटरेस्ट अमाउंट वाला जो फंडा है वो भी कम हो जाएगा, तो देयर अर्निंग विल अगेन बिकम एक्सपोनेंशियली राइज। तो ये रिजल्ट खराब देंगे, समझना, मेटल जब रिजल्ट खराब देंगे ना तब उनका स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। मोस्ट पीपल विल सरप्राइज कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। सेम चीज़ हैपनिंग इन MRPL एंड ऑल दिस, जो देखा था ना या इस ISMT ये सब में, ये इनके रिजल्ट खराब आएंगे, सबके मेटल के रिजल्ट खराब आएंगे। रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल्ड है। अभी आप देखोगे कॉपर प्राइस वो सब नीचे आ चुके हैं, लेकिन दैट इज़ अ गुड पार्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर ओनली कि अभी जो इंटरेस्ट रेट कट का बात चल रहा है, फेड बोल रहा है रेट कट करेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा, तो फॉर दैट रीजन दे विल स्टार्ट मूविंग अप वेरी फास्ट। नाउ आई विल शो यू दिस ऑन चार्ट ऑन फंडामेंटल पार्ट। दिस इज सेल, है ना। अभी चार्ट सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पी पे क्लिक करो, तो दिस इज योर पी, 5 साल का पी देखते हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट योर पी इज जस्ट 3 एंड योर yeah, this point in September 21-22 your P is just 3.2 and your earning is 32, right? इसका मतलब 3 साल में you will recover the money if you invest in this stock. अर्निंग भी ये ब्लू जो आप बार्स देख रहे हैं, दिस इज अर्निंग। स्टिल 21 के आसपास देखोगे ना आप, ठीक है, 21 से 22 का जो पार्ट था, द स्टॉक वॉज फॉलिंग ऑन एवरी रिजल्ट, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आ चुका था। तो जो अब आपके मन में नहीं आएगा क्या, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट जस्ट 3 PE, सिंपली 2 और 3 PE एंड द स्टॉक इज फॉलिंग विद गुड अर्निंग। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे द अर्निंग स्टार्ट रिड्यूसिंग जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन इज नाउ अंडर कंट्रोल, एंड फॉर दैट रीजन इनके अर्निंग देखो, पहले जो 33 हुआ करती थी, दैट अर्निंग विल बिकम 7 ओनली, राइट। तो अब ये पी इनका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। Now the P at this point is 30 because earning is only 3. जो earlier the earning is 33, now that is divided by only 10, so that is only 3. Now P is 29 as compared to this P is quite high. Now September 23 के बाद क्या हुआ, the stock again increasing. मतलब जब P 3 था तो stock was falling, and when the P is 30 the stock was again increasing. So this is a complete inverse funda of P in commodities. क्लियर है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम वेन एवर द रिजल्ट विल कम ऑफ द कॉमोडिटी, यू विल सी दैट द थिंग्स विल हैपन जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज इट क्लियर टू यू? बिकॉज कॉमोडिटीज क्या होता है, हमेशा नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग पे ऊपर बैट करता है। उसको पता है कि ये रिजल्ट खराब आया बिकॉज इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, वॉट एवर द नेक्स्ट रिजल्ट विल कम दैट विल बी बेटर देन दिस वन, ओके। तो एंड फॉर दैट रीजन मैंने MRPL में आपको यही चीज़ कंसेप्ट बोला था कि तो जो वर्स्ट फैक्टर था वो ऑलरेडी स्टॉक ने कैप्चर कर चुका है, क्योंकि जब इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे थे ना तो ये स्टॉक मूव नहीं कर पा रहा था, ये नीचे था। तो ऑलरेडी अभी जब खराब रिजल्ट आया तो ऑलरेडी वो फैक्टर इन हो चुकी थी ये बैड अर्निंग इसकी। तो नाउ स्टॉक इज वर्किंग ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग अर्निंग, फॉर दैट रीजन
मोस्ट पीपल दिस वॉज अ शॉक कि भाई इसका पुअर क्यों क्यों हुआ है, ये 10% नीचे परसेंट पर नीचे चला जाएगा, बट आई नो दैट टाइम कि दिस इज ऑलरेडी सेटल्ड. So this is how the things work in the commodities. If you take the Hindustan Copper, so now the P is 104, right? तो अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे जो अर्निंग वॉज P is 30 and earning is 33, but this time the Hind Copper start moving up. यहाँ पे आप देखोगे ना तो 44 का P 2620 P का आपका चल रहा था, इस टाइम पे वो बीच में चलना बंद हो गया था बीच में, तो वही वाला कंसेप्ट आपको यूज़ करना है. ठीक है, so this is how actually you have to check in the fundamentals. And the good thing is for fundamentals you don't need to study. You let me share you one cheat code also. यहाँ आप जाएंगे ना तो आपको ठीक है, आप एक बार सर्च करना तो यू विल फाइंड श्रीनिधि. आई विल शेयर यू द दैट पार्ट. श्रीनिधि करके हैं जो फंडामेंटल्स के जो रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं. तो जस्ट गो टू हिज पोर्टफोलियो प्रोफाइल एंड वहाँ पे यू फाइंड दिस थिंग ब्लॉकबस्टर. आप सिर्फ सर्च करना तो यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट. तो जस्ट पुट दैट स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट बिकॉज यू नो नाउ यू हैव द स्टॉक्स विच हैज द गुड रिजल्ट. तो उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रेड लेना है. जब भी लगता है आपको सपोर्ट पे अच्छा सेटअप बना रहा है तो बेटर. तो ऑलवेज ट्राई टू डू द ट्रेड विद द सेटअप. वाई आई ऑलवेज, आपने देखा होगा बार बार मैं IFCI पे घूम के क्यों आ जाता हूँ, उसका रीज़न ये है बिकॉज दिस कंपनी इज ए टर्न अराउंड थिंग, राइट. द टर्न अराउंड स्टोरी है. यहाँ अर्निंग्स आप देखोगे नेगेटिव हुआ करती थी, नाउ दिस इज बिकम पॉजिटिव एंड 0.8 and 6.61, राइट. तो फॉर दैट रीज़न जब अर्निंग आप देखोगे तो दैट इज बिकमिंग 2x 3x, और नेगेटिव से तो आप कंपेयर करोगे तो कार क्वाइटली गुड है. तो इस चक्कर में मैं उसके अंदर ट्रेड लेता हूँ बिकॉज स्लोली नाउ FI इज इंक्रीजिंग, ऑल्सो इंक्रीजिंग दिस थिंग. एंड पब्लिक में ठीक है, पब्लिक जो थी 25 था उधर, नाउ दैट इज रिड्यूस टू 20. तो इफ पब्लिक होल्डिंग इज रिड्यूसिंग मतलब बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक. So for that reason this is going up. So this is how you can do the fundamental analysis. Whatever company I will found, I will share both the things with you and I will show you how it will reflect in the chart. So for example let me share one more stock with you. Force Motor, ठीक है, the P is 32. Now coming to the quarterly results. Now if you see that from 22 this is -12 -11 111 सीधा हुआ था. March 23 then 52 71 64 106. Force Motor. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स मोटर चार्ट. यहाँ पे अर्निंग कैटलिस्ट हुआ था फरवरी 24. मतलब फरवरी 24 मतलब आपका दिस वन. आप यहाँ पे आपको कैटलिस्ट मिला ना Jan 24 मतलब दिसंबर 23 का दिसंबर दिस. ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो था दिसंबर में दिस इज 1300 मतलब दिस इज -11 टू +64 आपका अर्निंग पर शेयर यहाँ पे डिस्कस हुआ. और उसके बाद दैट विल बिकम डायरेक्टली टू द 2x एंड फॉर दैट रीज़न द स्टॉक विल बिकम फ्रॉम 3800 टू 10,000 मतलब 3x. मतलब वहाँ पे भी आपका अर्निंग 2x बढ़ा तो यहाँ पे स्टॉक आपका 3x हो गया. तो सिंपली इफ द चार्ट इज सेइंग your setup is good and fundamentally saying the same story, then you can take a good bet on such type of stocks. यहाँ पे तो आपको दूसरा भी दिख रहा है कि this is your first breakout, this is your second breakout, all your soldiers are aligned, quite good VCP. So in such type of stock you can make a good positions, right. So this is how you can trade. So this is all from my side about the module 2. We have covered all the points. In case if you have any doubt you can ask me in the group, so we will discuss, and in next webinar on Saturday Sunday whatever it is, so we will discuss whatever doubt you will be with have module 2. That's all from my side. Thank you.